Welcome back to Smart Prepnet. So, in last video, we discussed about the first part of the environmental biology course. Okay. So, in this video, we are going to the final part, the second part. Okay. As per we have discussed, like we will complete this in two parts. So, we will do it. I hope you are doing. Everyone is doing well. So, let's start. तो लास्ट में क्या हुआ था कि हमने फर्स्ट पार्ट में सिलेबस डिस्कस करना थोड़ा भूल गए थे. दैट्स माय फॉल्ट. सॉरी फॉर दैट. बट लेट्स सी. यहाँ से देख लेते हैं. So unit 3 environmental biology. So first is ecology and interdisciplinary science. Then origin of life, human ecology, settlement, ecosystem structure and function, structure, biotic, function, energy flow in the ecosystem, energy flow models we have to read on food chains and food webs, biogeochemical cycles is there, ecological succession, species diversity, concept of ecotone, age effect, ecological habitat and niche, ecosystem stability factors and stability of ecosystem services are there. Then after we have basis of ecosystem classification. Basis of ecosystem classification. On what basis we classify, like on latitudinal basis we have. Then we have extent of the ecosystem. Then we have aquatic and you know terrestrial ecosystem. And we have different ways to classify. Okay. Types of ecosystem. We have desert, forest, rangeland, wetland, lotic and lentic, estuarine, oceanic. We will read it. Then biomes. Biomes we have different biomes. We have to read about concept biomes, how this biome concept originated, classification we have to read, distribution, and then we will jump to the characteristic of different biomes, like what are the different characteristic, how geographical extent from uh, and then other things like the, where this biome is located, that is geographical extent, only climatic condition, vegetation types, and what are the species there, not there, like that. So in that we have tundra, taiga, grassland, deciduous forest biome, highland, icy alpine biome, chaparral, okay, savanna, tropical rainforest, etc. Then we have population ecology. Okay, here we have to read about the characteristic of population, concept of carrying capacity, okay, population growth and regulations, population fluctuation, dispersion, metapopulation, concept of RNK species, and keystone species. Almost from each of these topics, question have been asked in the so all are important. Then we have community ecology. Definition, community concept, types, interactions that we know predation, herbivore, parasitism, allelopathy, biological invasion, etc. Okay. Then we have biodiversity and its conservation. Then definition of biodiversity, conservation definition, types, importance of biodiversity, what are the threats. You know, either climate change also will come. Anthropogenic, natural. In anthropogenic we have deforestation, pollution, etc. In natural we have climate change. Climate change also anthropogenic induced or naturally also. So we'll read about that. Then we have concepts and basis of identification of hotspots. Okay, what are the hotspots in India? Measure of biodiversity, how we measure. Okay, the strategies of biodiversity conservation like in situ conservation, ex situ conservation, in vitro conservation, national parks, sanctuaries, protected areas, sacred groups in India, concept of gene pool, biopiracy, bioprospecting, concept of restoration ecology, extinction, rare, endangered, threatened, flora and fauna of India. So from this you'll come to know that there are so many things under which it's like mountain things. You know, we have to read, understand, and learn. And they ask questions. Now they're going in for last 1 or 2 year. I have observed personally that they're going in much deeper level, much and they're overlapping. It's like they are taking 2 3 topics and merging them and then creating the questions. So
in coming years we are going to see there are going to be less direct questions. Okay, and they are going much deeper. Direct questions are going to be much deeper, much factual oriented. So, and also we have to understand the concepts are, the in book the concepts are written like in directly, but in exam many of the concepts they are asking indirectly. So we have to very thorough with the concepts also. Otherwise it looked like the answer is going to be this, but when you come to home, when you read it again and again, they will come to, oh, I made this mistake. So now they are playing on that thing. Gone are that those days where there used to be too many direct questions. Okay, so we have to prepare accordingly. Then we have concept of industrial ecology. Then after we have toxic ecology and microbiology. After industrial ecology. In this we have to know about absorption, distribution of and excretion of toxic agents, acute and chronic toxicity, concept of bioassay, threshold limit, value, margin safety, major waterborne disease and airborne microbes. Then we have environmental biotechnology. In this we have bioremediation, different types of role of plants and microbes for in situ and ex situ remediation, bioindicators, biofertilizers, biofuels and biosense. So these are topics. In this unit 3 we have like one big unit related with ecology. Then they have included the industrial ecology also. This is like, if you go in, if you consider it as a subject, then environmental ecology is a subject in itself. Then we have industrial ecology, a one subject in itself. Then toxic ecology and microbiology is one subject in itself, and environmental biotechnology is another subject in itself. So it's like unit 3 is like four subjects, okay, in one unit. So this is a vast unit, vast. Okay, now they have started going deeper in these topics, so we have to learn so much. And for this microbiology and environmental bacteria, we also need to learn, not to have good knowledge of environmental chemistry, environmental pollution and all these things to work on this. And the knowledge of these topics, the concept of these topics are going to be applicable in those units also. Okay. Okay, then let's start with the remaining questions. So here is the question 46. We have discussed till 45. 45 तक हमने डिस्कस किया था, क्वेश्चन 45 तक. Now we have question 66. So here we have interactions and general native interaction. Okay. So first is parasitism. Here this one is easy topic. बहुत ही आसान टॉपिक है एंड क्वेश्चन भी बहुत इससे मतलब इस लाइक कि बहुत आसान है. ये तो नंबर जाना ही नहीं चाहिए. ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मतलब कि ये चाहिए ही चाहिए. ठीक है. तो parasitism क्या है देखते हैं. स्पीसीज ए बेनिफिट व्हाइल स्पीसीज बी रिमेन्स अनअफेक्टेड. अच्छा इधर से चलते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा. स्पीसीज ए बेनिफिट व्हाइल स्पीसीज बी रिमेन अनअफेक्टेड. ये किसका है? तो ये है कमेंसलिज्म का. हाँ. उसके बाद क्या है? बोथ ए एंड बी आर अफेक्टेड इन द इंटरेक्शन. तो ये क्या होता है? ये कंपटीशन में. स्पीसीज ए जनरली स्मॉलर देन स्पीसीज बी. ये इसका क्या हो जाएगा? स्पीसीज ए जनरली स्मॉलर देन स्पीसीज बी. तो इसका हो जाएगा म्यूचुअल. इसका हो जाएगा पैरासिटिज्म. पैरासाइट एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है. बोथ स्पीसीज ए एंड स्पीसीज बी पॉसिबली केयर म्यूचुअली. ये दोनों का फायदा साथ में रहने में. पैरासिटिज्म में एक का बड़ा होता है, एक छोटा स्पीसीज होता है, और एक का नुकसान होता है और एक को फायदा होता है. कमर्शियलिज्म में एक को फायदा होता है, दूसरा को कुछ नहीं होता है. एक इसका अपोजिट होता है अमेंसलिज्म. उसमें एक को फायदा दूसरे को नुकसान होता है. कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है. मतलब मेनली कंपटीशन क्या, रिसोर्स है, रिसोर्स कम है, उसके लिए मैं भी कर रहा हूँ फाइट, मैं भी कर रहा हूँ, मेरे को भी थोड़ा सा मिला तो उनको थोड़ा सा, तो इस तरह से. प्लस इस कंपटीशन के कारण हमारे बीच में इंटरेक्शन होता है, कई बार मारधाड़ भी हो सकती है जानवरों के बीच में, तो उसके कारण भी नुकसान होता है. ओके.
चलते हैं नेक्स्ट। आई थिंक इसमें बहुत कुछ तो है नहीं, ये तो बहुत ही नॉन टॉपिक है। ये एक्सप्लेनेशन फिर भी दे दिया मैंने, पैरासिटिज्म का, म्यूचुअलिज्म का, केमिस्ट्रिज्म का, कंपटीशन का, ठीक है। ये है चार्ट, ये याद रहेगा दिमाग में तो सब सही है। म्यूचुअलिज्म, स्पीसीज ए और स्पीसीज दोनों का फायदा, जैसे बी और फ्लावर, पॉलिनेशन कर दिया, बी को सैप मिल गया, नेक्टर मिल गया, तो खाना मिल गया, इसको पॉलिनेट कर दिया, फायदा फायदा। कमर्शियलिज्म में एक को फायदा को कोई नुकसान नहीं, जैसे एपीफाइट्स ऑन ट्रीज होते हैं, मोस्टली ये ट्रॉपिकल रीजन में एपीफाइट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अपने अभी जो बारिश वाला एरिया है, बारिश के दिनों में या फिर बारिश वाला एरिया है, मतलब दिख जाते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब इंडिया में तो हर तरह की चीजें दिख जाती है, ट्रॉपिकल से लेके सारे तरह के लोग ऑलमोस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, एपीफाइट्स इसके ऊपर ये जा रहे हैं और ये पेड़ है, तो ये वो नहीं है जो हम समझते हैं, जैसे ना इन्वेजिव स्पीसीज डॉडर हो गया, ये सब जो, वो नहीं, ये एपीफाइट्स क्या है कि ये ग्रो करते हैं, बट रिसोर्स यहाँ से नहीं लेते, पेड़ से नहीं लेते, अपने बस इनके सपोर्ट के लिए, इससे इसको कुछ नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन इनका फायदा है कि सपोर्ट मिल गया ऐसे। पैरासिटिज्म में क्या है, एक छोटा बड़ा जानवर है, एक छोटा से, जैसे फ्लीज और कैट्स पे, एक को फायदा दूसरे को नुकसान। एमएलसिज्म को क्या है, एक को नुकसान और दूसरे का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। मोल इनहिबिटिंग बैक्टीरिया। उसके बाद क्या है, कंपटीशन, ठीक है, बर्ड्स कम्पीट फॉर कॉमन फूड, तो दोनों को नुकसान। उसका प्रेडेशन, एक को फायदा दूसरा को मर गया, खत्म। न्यूट्रलिज्म, ठीक है, दोनों को कोई फायदा नहीं। प्लांट्स इन फॉरेस्ट, ठीक है, हाँ ठीक है, तुम भी जिंदा हो, हम भी जिंदा। फिर हर्बी बोरी, ठीक है, एक को फायदा दूसरे को नहीं। जैसे घास को नुकसान है, जेबरा का तो पेट भर गया, बट घास का क्या, घास लाइफ्स मैटर, ठीक है, ठीक है। पैरासिटोइडिज्म, इसमें एक का नुकसान एक का फायदा, जैसे बीज लेग एग्स इन बिटल्स, बिटल्स के अंदर ही अपने अंडे दे दिए, ठीक है, इसका तो फायदा हो गया, बट नुकसान हो गया, बेचारा बिटल सबके देखभाल कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट भी इंडिकेटर स्पीसीज है और उसके एग्जाम्पल है। ये इंडिकेटर स्पीसीज वो होते हैं, ठीक है, सबसे पहले हमें जानना है इंडिकेटर स्पीसीज वो होते हैं, ठीक है, जिनका प्रेजेंस या अब्सेंस, मतलब या तो प्रेजेंस, अब्सेंस या उनका अबंडेंस, ठीक है, या फिर उनका कंडीशन किस हालात में, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट। मतलब इंडिकेटर स्पीसीज वहाँ के इस जिस इन्वायरमेंट में है ये स्पीसीज, वो वहाँ के इन्वायरमेंट के कंडीशन के बारे में हमें बताते हैं इंफॉर्मेशन। ये बहुत ही वैल्यूएबल टूल्स की तरह काम करते हैं कोई भी इन्वायरमेंट का असेसमेंट करने के लिए, ठीक है, या मॉनिटरिंग करने के लिए। इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें डिटेक्टर्स होते हैं, ठीक है, सेंटिनल्स होते हैं, एक्सप्लॉइटर्स होते हैं, उसके बाद बायो इंडिकेटर्स होते हैं, एक्यूमेटर्स होते हैं, ठीक है। कई बार एक ही रीजन में कई सारे भी हो सकते हैं, या फिर सारे के सारे भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स, ठीक है। तो पहला है बायो ऐसी ऑर्गेनिजम्स, तो ये बायो ऐसी, ठीक है, ऐसी ऑर्गेनिज्म क्या है, ये यूज इन कंट्रोल लेबोरेटरी टेस्ट, ठीक है, ये कंट्रोल लेबोरेटरी टेस्ट टू एसेस द टॉक्सिसिटी और इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, तो ये उसके लिए यूज होता है, ठीक है, टेस्ट करने के लिए, कहाँ पे, कंट्रोल लेबोरेटरी टेस्ट के लिए, ठीक है। कौन सा, बायोसियर, तो ये ट्राउट मछली है, ठीक है, ट्राउट, ठीक है, ये कॉमनली यूज है एक्वाटिक टॉक्सिसिटी टेस्ट के लिए, कॉमनली यूज ये है ट्राउट। उसके बाद है डिटेक्टर्स, डिटेक्टर्स का काम क्या है, तो हमसे ही समझ में आ रहा है, कुछ डिटेक्ट करने के लिए, तो इंडिकेट करते हैं प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट्स और इन्वायरमेंटल चेंज को, ठीक है, अपने प्रेजेंस या एब्सेंस से, या फिर अपने रिस्पॉन्स से, ठीक है, कुछ अलग सा कलर चेंज हो जाएगा, या मतलब प्रेजेंस से आपसे मतलब गायब हो गए, या फिर प्रेजेंट हो गए, या फिर कलर चेंज हो गए, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। वो डिटेक्टर मतलब वो पहले दी, जैसे कि इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है, कुछ पोल्यूशन उस एरिया में बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उसका इम्पैक्ट जब कम्युनिटी लेवल पे आ जाए, मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, उसके पहले ही रिस्पॉन्स दिखा देते हैं, तो ये हो गए डिटेक्टर्स, ठीक है। तो इसको क्या होगा, कुछ जो हीथलैंड कम्युनिटीज होती हैं वो ऐड करते हैं इसकी तरह नाइट्रोजन डिपोजिशन के, ठीक है, या कौन सा नाइट्रोजन डिपोजिशन के, ठीक है, प्रेजेंस या एब्सेंस को दिखाते हैं, ठीक है। जिसे एक और है लाइकेंस है, वो भी दिखाते हैं, ठीक है, एयर क्वालिटी को। उसके बाद एक्सप्लॉइटर्स, एक्सप्लॉइटर्स क्या करते हैं, थ्राइव इन पॉल्यूटेड और डिस्टर्ब्ड कंडीशन, ऑफन इंडिकेटिंग पुअर एनवायरमेंटल क्वालिटी, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या होगा, टर्फिसिड वॉर्म्स इन एक्वाटिक हैबिटेट। उसके बाद सेंटिनल्स, सेंटिनल्स है वो ऑर्गेन्स यूज किए जाते हैं इन सिटू मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है। एक्यूमुलेटिंग पॉल्यूटेंट्स इन देयर टिश्यू में, अपने टिश्यू में एक्यूमुलेट कर लेते हैं, शोइंग फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू सिग्नल इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन ओवर टाइम। तो जो कैनरीज है कोल माइंस में वो इसका काम करते हैं, ठीक है। क्लासिकल सेंटिनल्स है किसके लिए, टॉक्सिक गैस के लिए, स्पेशली कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमें वार्निंग मिल जाता है माइनस को कि नहीं भाई आगे मतलब सेंसिटिव एरिया है या फिर डेंजर है। चलते हैं आगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे हिसाब से, A4 B3 B2 B1, तो 2। नेक्स्ट, थोड़ा बहुत डिटेल्स दिए हुए पढ़ लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट, given below are two statements, one is level and assertion is a question, ठीक है। assertion क्या कहता है कि every mountain within zono biome is an ecological entity, ठीक है, with a typical sequence of altitudinal beds but the pattern differ from one mountain to another, ठीक है। रीजन क्या कहता है, orogenic forces influence the zono biomes, thus orobiomes are distinguished according to zono biomes they belong to, ठीक है। तो इसमें पहले हम समझते हैं कि कहना क्या चाहता है, ठीक है, क्योंकि उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। तो जो माउंटेन्स होते हैं खासकर पहाड़, तो उसमें एल्टीट्यूडनल जोनेस होते हैं, जोनेशन होता है, जैसे कि हाइट के हिसाब से जोन बनते जाते हैं, ठीक है। होता है ना अल्पाइन जोन, टेंडा टुंडा, ऐसे जो पड़े। तो वेजिटेबल बेल्ट भी चेंज होता है एलिवेशन के साथ, क्योंकि जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, प्रिसिपिटेशन है, वो सब कुछ चेंज हो रहा है अलग अलग, ठीक है। तो माउंटेन था तो अलग अलग जगह प्रिसिपिटेशन चेंज होगा, हाइट पे जाएंगे टेम्परेचर चेंज होगा, प्रिसिपिटेशन का फॉर्म भी चेंज होता है, ऊपर सॉलिड हो रहा है, यहाँ पे बारिश हो रहा है, यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है। तो अकॉर्डिंगली क्या होगा, तो डिस्टिंक्ट इकोलॉजिकल जोन्स बनेगा, मतलब ओरो बायोम्स बनेंगे। ओरो मतलब पहाड़, माउंटेन रिलेटेड है, ठीक है। ओरो मतलब माउंटेन तो ओरो बायोम्स बनेंगे, मतलब यहाँ पर बायोम एक तरह का, यहाँ का बायोम एक तरह का, यहाँ का बायोम एक तरह का। तो ये हो गया क्या बता, जोनो एल्टीट्यूडनल जोनेशन के बारे में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि लेकिन स्पेसिफिक सीक्वेंस एक्सटेंट और स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ दिस बेल्ट्स वैरी बिटवीन माउंटेन डिपेंडिंग ऑन फैक्ट, ठीक है। कुछ कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, एक्सटेंट होता है, स्पीसीज कंपोजिशन होता है, इस बेल्ट्स का वैरी करता है बिटवीन माउंटेन डिपेंडिंग ऑन फैक्टर लाइक लैटिट्यूड एस्पेक्ट्स, ठीक है, मास, एलिवेशन एंड द सराउंडिंग रीजन, क्लाइमेटिक जोन्स, ठीक है। तो ये सही बात है कि कई बार क्या होता है कि जैसे ये माउंटेन है, इसका स्लोप ऐसे हो गया, ठीक है, यहाँ पे जोनेशन तो हो रहा है, इसका हाइट भी बहुत ज्यादा है, तो अलग अलग जोनेशन हो सकते हैं, अलग अलग तरह के क्या हो सकता है, पैटर्न डिफर हो सकता है। कोई है माउंटेन ऐसा है तो, ठीक है, तो इस पे फिर जोनेशन बनेगा, लेकिन इस पे इस जो क्या बोलते हैं, ये सीक्वेंस का जो है इकोलॉजिकल इंटिटी है, फिजिकल सीक्वेंस है एल्टीट्यूडनल बेड्स का, वो पैटर्न डिफरेंट हो सकता है। सच सही है, हाँ सही बात है। डिपेंड करता है ना स्लोप कैसा है, मतलब ये तो हमारा एक हम जनरल लिए थे कि ऐसे होता है, लेकिन इस स्लोप पे भी डिपेंड कर सकता है, ठीक है। उसके क्या बोलते हैं लैटिट्यूड पे डिपेंड कर सकता है, ये किस लैटिट्यूड पे, 0 डिग्री लैटिट्यूड पे है, मतलब अगर हम 0 डिग्री लैटिट्यूड पे है तो वहाँ पे बहुत हाइट पे स्नो होगा, ठीक है, वो भी एक दो माउंटेन पे। अब हम चले जाइए 20 डिग्री लैटिट्यूड पे, तो वहाँ तो ऑलरेडी नीचे भी बर्फ ही होगा, तो वहाँ का जोनेशन तो अलग हो गया। तो वही कह रहा है, ठीक है, कि एवरी माउंटेन विद जोनो बायोम इज एन इकोलॉजिकल एंटिटी, जो हर जोनो बायोम है, एक दो तीन इकोलॉजिकल एंटिटी विद ए टिपिकल सीक्वेंस ऑफ एल्टीट्यूडनल बेल्ट, ठीक है, एल्टीट्यूडनल बेल्ट है टिपिकल सीक्वेंस है एल्टीट्यूड हाइट के हिसाब से, बट पैटर्न डिफर फ्रॉम वन माउंटेन, सही बात है। वन माउंटेन टू एक माउंटेन बहुत ही स्टीप है, वहाँ पे वैसे मोस्टली स्पीसीज रहेंगे जो स्टीप पे रह सकते हैं, कोई एक माउंटेन है बहुत ही स्लैंट है, तो वहाँ पे वो भी स्पीसीज फाउंड हो सकते हैं जिसपे क्या बोलते हैं, मतलब उतना स्टीप मतलब स्लैंटिंग जो उसको स्लैंटिंग लैंड पे जो रह सकते हैं, ठीक है। उसके ठीक है, मास एलिवेशन इफेक्ट भी पड़ता है, सराउंडिंग रीजनल क्लाइमेट कैसा है, जोनो बायोम कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है, तो क्लियर करते हैं।
उसके बाद बात क्या है कि ओरोजेनिक फोर्सेस इन्फ्लुएंस द जोनोबायोम्स। मतलब ओरोजेनिक फोर्सेस मतलब माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस, ठीक है। जो माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस होते हैं वो काफी नेक्स्ट यूनिट में है, इन्वायरमेंटल जियो साइंसेज में ये सब पढ़ना है। तो ओरोजेनिक माउंटेन बिल्डिंग, ठीक है, फोर्सेस इन्फ्लुएंस द जोनोबायोम्स, ये सही बात है। दस ओरोबायोम्स आर डिस्टिंग्विश्ड अकॉर्डिंग टू जोनोबायोम्स दे बिलोंग टू। ओरोबायोम्स आर डिस्टिंग्विश है जिस जोनोबायोम्स में पाए जाते हैं according। तो जो ओरोजेनेसिस है क्रिएट्स टोपोग्राफी दैट लीड्स टू एल्टीट्यूडनल जोनेशन, ठीक है। जो ओरोजोन ओरोबायोम्स है, माउंटेन बायोम्स है, ठीक है, तो किस चीज पे क्लासिफाइड होते हैं, डिस्क्राइब होते हैं, कोई लार्ज रीजनल क्लाइमेटिक जोन, जोनोबायोम्स के हिसाब से, इन विच दे अकर। जैसे कि ट्रॉपिकल ओरोबायोम हो गया वर्सेस टेम्परेट, ठीक है, ओरोबायोम। कि ट्रॉपिकल रीजन में पहाड़ है उसका बायोम, एक टेम्परेट रीजन में पहाड़ है उसका बायोम। तो ओरोजेनिक प्रोसेस जोनो जोनो बायोम्स को इन्फ्लुएंस करते हैं बिल्कुल। दस ओरो बायोम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू जोनो बायोम्स दे बिलोंग टू। तो वो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। ये जियोलॉजिकल कॉज होता है, मतलब ओरोजेनिक प्रोसेस मतलब माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस जो जियोलॉजिकल चीजों से होता है, ठीक है, जो माउंटेन फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये सही बात है कि ओरोजेनिक की जो इन्फ्लुएंस है जोनो बायोम्स को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। क्योंकि कौन कौन से कौन सा माउंटेन बहुत ज्यादा हाइट का होगा, कौन सा स्लैंटिंग हाइट का होगा, ये सब ओरोजेनिक फोर्सेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। वहाँ का जैसे वोल्केनिक माउंटेन है, वहाँ का सॉइल अलग टाइप का है, ठीक है। सॉरी। तो इस प्रकार से उसका क्या है, 10 ओरो बायोम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू जोनो बायोम्स द बिलोंग टू। हाँ, अब किस जोनो बायोम्स में है, जैसे कि अगर कोई ओरो बायोम ट्रॉपिकल में है तो वहाँ पे हो सकता है कि ज्यादा जोनेशन हो, तो टेम्परेट में वहाँ कम जोनेशन हो। वहाँ को ओरो बायोम जैसे यहाँ पे 3000 हाइट पे आया है, सपोज यहाँ पे 3000 मीटर पे आ रहा है, सपोज कि क्या कह सकते हैं, एग्जाम्पल क्या लेंगे, सपोज कि यहाँ 6000 मीटर पे एक टाइगर टाइप आ रहा है और यहाँ पे 3000 मीटर पे टाइगर टाइप आ जाए, तो है ना डिफरेंस। तो वही कहा, तो ये भी पॉइंट सही है। अब देखना है किसी वाई, वाई वाला क्वेश्चन लगा के इसका एग्जाम्पल बिकॉज लगा एवरी माउंटेन विद इन जोनो बायोम इकोलॉजिकल एक्टिविटी entity with a typical sequence of altitudinal belts, but pattern differ from one mountain to another. Because the zonobiomes and thus orobiomes are distributed according to zonobiomes they belong to। दोनों अपने आप में सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे पा रहा क्योंकि ये माउंटेन बिल्डिंग की बात कर रहा है, ये पैटर्न डिफर डिफर माउंटेन टू माउंटेन बोल रहा है, ठीक है। तो तो इसका एक्सप्लेनेशन, अच्छा तीन ही क्वेश्चन हुआ, थोड़ा फास्ट चलेंगे अब। ये थोड़ा डिटेल्स में ये हुआ, ठीक, ठीक है। की स्पीसीज दैट हैज क्या है इफेक्ट, क्या होगा कीस्टोन सिस्टम, लार्ज इफेक्ट होता है कीस्टोन स्पीसीज का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था, ये याद रखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं है लेकिन जिस तरह से आ रहे हैं पूछ सकते हैं। रॉबर्ट PAINE, ठीक है, रॉबर्ट पेन, ठीक है। इसने स्टडी किया था सी स्टार पे, ठीक है, इंटरटाइलर जोन्स में। तो उसने देखा कि जब सी स्टार को उसने इंटरटाइलर जोन से निकाल दिया, मतलब हटा दिया, तो देखा कि उस एरिया में उन्होंने देखा कि ड्रास्टिक डिक्रीज हो गया स्पीसीज डाइवर्सिटी में, जैसे मसल्स के, ठीक है, म्यूसल्स के, या फिर और भी जो प्रेफर्ड प्रे हैं, ठीक है, और भी दूसरे ऑर्गेनिम्स ने आउट कम्पीट कर दिया दूसरे ऑर्गेनिम्स को। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इस प्रकार से ये बहुत ही जरूरी है। तो याद रखेंगे किसने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट को, रॉबर्ट पेन ने, ठीक है। रॉबर्ट पेन ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, कीस्टोन स्पीसीज का, ठीक है। तो कीस्टोन स्पीसीज क्या होता है, इन्फ्लुएंस क्या होता है इसका, लार्ज इन्फ्लुएंस होता है किसी पे, कम्युनिटी स्ट्रक्चर पे, फंक्शन पे, बायोडाइवर्सिटी पे, ठीक है। और ये डिस्प्रोस्पेन, ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज होता है। क्यों, इसके एबेंडन मतलब सपोज कि 10 है लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है,
10 को हटा दिया, 10 से 2 हो गए, बहुत अंतर पड़ जाएगा। इसलिए उनका बहुत ज्यादा मोस्टली एपेक्स प्रेडेटर ये सब आते हैं इसमें। और उसके अलावा और भी बहुत से एग्जाम्पल जैसे कि वीवर है, वीवर, सी ऑटर्स है। सी ऑटर्स क्या करते हैं, सी अर्चिन के पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। उससे क्या फायदा होता है, केल फॉरेस्ट सही से ग्रो करते रहता है। केल फॉरेस्ट सही से ग्रो करते रहता है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लिमिट मतलब ठीक ठाक मेंटेन रहता है। ठीक है। वीवर के बारे में सबको ही पता है, वो इकोसिस्टम इंजीनियर्स भी कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। ये दिया हुआ कॉन्सेप्ट रॉबर्ट पेन ने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये सब याद रखेंगे। ठीक है। इनका लार्ज इम्पैक्ट है रोल पे कंट्रोलिंग डोमेन स्पीसीज habitat for species serving a critical link between food webs and nutrient cycle, casual pollination, seed distribution। टास्क यहाँ पर की स्टोन स्पीसीज के दिए हुए सी एटर्स है, प्रेडी डॉग है ग्रासलैंड में। ठीक है। वुल्फ्स है फॉरेस्ट सिस्टम में, पॉपुलेशन हर्बीवोर वीवर, एलिफेंट सवाना में है। ठीक है। वीवर है, अब एलिफेंट सवाना में, ठीक है, वेजिटेशनल सिस्टम को बनाया रखता है वीवर सर्कल सिस्टम। उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे और भी लिस्ट दे रखे। ठीक है। अफ्रीकन एलिफेंट के अलावा देख, जैसे कि स्ट्रैंगलर फिग ट्रीज है, उसके बाद सार्क्स का है, टॉप प्रेडेटर्स है, क्रील है, रिसोर्स प्रोवाइडर, इस तरह से देख लेंगे। और भी जैसे अगर पढ़ते में आ जाए उसको ध्यान रखेंगे कि हाँ ये है, एग्जाम्पल भी कल को इस तरह से आ सकता है। इसमें से कौन सा कीस्टोन स्पीसीज नहीं है या फिर है, तो नाम सुने रहने चाहिए दिमाग में। चलते हैं नेक्स्ट। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ आर्सेनिक इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ देयर LD50। सो इनको अरेंज करना है, फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ आर्सेनिक इंक्रीज वैल्यू ऑफ देयर LD50। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो याद रखें कि पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। देखिए एक लिमिट है ना, नॉट ऐसे क्वेश्चन रहेंगे हर बार, मतलब आउट ऑफ 100 अगर आते हैं, 100 जो क्वेश्चन आते हैं ना तो मान के इसमें इसमें अराउंड 15 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। ठीक है। 10 से 15 रहते हैं, बट मतलब 10 से 15 क्या होगा, ठीक है, 10 से 15 टफ वाले हो गए तो, बट इसमें से भी आधे तो डुएबल है, 50% जरा बहुत अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है। तो सबसे पहले LD50 पता ही है क्या होता है, उनको नहीं पता है फिर से बता देता हूँ। LD50 मतलब एडिशनल डोज 50%, मतलब ये डोज रिक्वायर्ड है टू किल 50% ऑफ द टेस्ट पॉपुलेशन। याद रखेंगे, कोई पॉपुलेशन जैसे 100 लोग लिए, 100 लोग लिए, मतलब लोग को नहीं कहें, कोई मतलब अर्जुन लिए, रैट लिए, और उसमें डोज देते हैं। ठीक है, चलो इतना MG इतना MG, देखा गया 3 MG के बाद 50% मर गया, तो उसका क्या हो गया, LD50 हो गया। ठीक है। उस LD50 पर MG पर केजी कि भाई इस तरह से अगर 2 MG पे ही मर जाए 80%, और एक ऐसा ड्रग है जिसके 1 MG पे मर रहा है, सपोज एक ड्रग है जिसके 2 MG डोज पे मर रहा है 50%, मतलब 50 रैट्स, और यहाँ पे 50 रैट्स। ठीक है, 100 लिए थे हमने, तो ये ज्यादा टॉक्सिक हुआ। तो क्योंकि भाई ये तो कम क्वांटिटी में ही मार दिया, और ये ज्यादा क्वांटिटी में, कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि अरे LD50 अगर किसी का ज्यादा है, नहीं, लोअर LD50 मतलब वो ज्यादा टॉक्सिक। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, इंक्रीजिंग LD50 मीनिंग मोस्ट टॉक्सिक से लेस्ट टॉक्सिक यहाँ पे हमें जाना है, यही पूछा है ना, कि इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ देयर LD50, मतलब सबसे ज्यादा टॉक्सिक से कम टॉक्सिक से। तो एक चीज हमको पता होना चाहिए कि जो इनऑर्गेनिक आर्सेनिक होता है वो जनरली मच मोर टॉक्सिक होते हैं ऑर्गेनिक आर्सेनिक से। ठीक है। और इनऑर्गेनिक आर्सेनिक में जो आर्सेनिक होते हैं ना, ट्राईवैलेंट आर्सेनिक, वो ज्यादा एक्यूटली मतलब बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। ठीक है। तो इसमें कौन सा हो सकता है, और जो मिथाइलेटेड ऑर्गेनिक फॉर्म होते हैं वो लेस टॉक्सिक होते हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म से।
या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्म्स, तो उसके आधार पर अगर हम देखें, अगर हमें पता हो, ठीक है, तो वो देखें। क्योंकि आर्सेनिक का मोस्टली क्या है ना, तो उसका टॉक्सिसिटी डिपेंड करता है उसकी केमिकल फॉर्म पे, मतलब स्पेसिएशन पे, वो किस केमिकल फॉर्म पे है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीजिंग में सबसे ज्यादा पोटेंट क्या, आर्सेनस एसिड, ठीक है, ये सबसे ज्यादा पोटेंट है, सबसे टॉक्सिक है। तो क्या आता है, आर्सेनिक एसिड। उसका क्या है, उसका रहता है डाई मिथाइल, ठीक है, आर्सेनिक एसिड। उसका क्या आता है, उसके बाद आता है आर्सेनो, उसका आर्सेनो, आर्सेनो कोलाइन, ठीक। और उसके बाद क्या आता है, आर्सेनो बेटाइल। इसका से आंसर क्या हो जाएगा, ए बी डी सी ई, ए बी डी सी ई, तो चौथा सी होगा। ठीक है, चलते हैं। टू इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू कंपोस्टिंग। अब ये कंपोस्टिंग से रिलेटेड है, ये है पढ़ना ना हमें कंपोस्टिंग इस यूनिट पर। यूनिट 3 में कैसे है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो सबको पता है कि जब माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन होता है तो क्या होता है, हीट निकलता है। तो पहला प्रोसेस, कार्बन इनटू नाइट्रोजन रेशियो मस्ट बी इन रेंज ऑफ 20 25 20 टू 25 टू 1। तो ये भी सही है, मतलब आइडियल तो जो रेंज है वो 20 से 25:1 है, ठीक है। आइडियल रेंज क्या है, 25 से 30, बट 20 to 25 भी मतलब एक्सेप्टेबल पैरामीटर्स में है, तो इसलिए भी सही। उसका जो कंपोस्ट इज ह्यूमस लाइक मटेरियल, ये बिल्कुल सही बात है, ह्यूमस लाइक मटेरियल होता है, ठीक है। उसके बाद है कंपोस्ट इंक्रीजेज मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, तो इंक्रीजेज द बफर कैपेसिटी, ये भी सही बात है। क्योंकि कंपोस्ट हेल्प करता है सॉइल को रजिस्ट, क्या चीज, पीएच चेंज करने में, ठीक है। तो उसके बाद बफर कैपेसिटी भी उसका बढ़ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, ये डिटेल्स दिए हुए। अब है अरेंज द फॉलोइंग गैसेस इन इंक्रीजिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन ड्यूरिंग द एरेशन प्रोसेस। एरेशन प्रोसेस जब होता है तो उसमें डिफ्यूजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन के हिसाब से हमें बताना है कि गैसेस का, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक लॉ है डिफ्यूजन का, इसको बोलते हैं कौन सा लॉ, तो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन स्टेट्स, ठीक है। ये क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन है ऑफ गैसेस इन, ये क्या बोलता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास। मतलब रेट क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास, कोई भी गैस का। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइटर गैस ज्यादा फास्ट डिफ्यूज करेंगे, ये हुआ ना। तो बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो याद रखेंगे ग्राम लॉ। तो H2 का क्या है, 2, एक है ना, पूरा मतलब मोल में 2 ग्राम। उसके बाद O2 का क्या आएगा, 32 16:2। Cl2 का क्या आएगा, 71। O3 का क्या आ जाएगा, 48। और बिस्मथ का क्या है, 209, ठीक है, 200। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सबसे हेवी कौन है,
ठीक है। इंक्रीजिंग रेट ऑफ डिवीजन मतलब सबसे कम किसका होगा, सॉरी सबसे फास्ट किसका, सबसे पहले किसका हो रहा है, तो ये हो गया 1, मतलब ई पहले आएगा तो ये तो खत्म, ये दोनों से उसके बाद कौन सा आएगा, सी आएगा, तो उसके बाद ये भी खत्म, तो हमारा आंसर क्या होगा, ई सी डी बी ए, ई सी डी बी ए, तैयार है, सही है। याद रखेंगे ग्राम्स लॉ, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलर मास, ठीक है। डिफ्यूजन का नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ध्यान दिए, उसका सम इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ इकोटाइप्स आर गिवन बिलो, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं इकोटाइप्स के, ठीक है। तो चलते हैं कि इकोटाइप्स है, इकोटाइप्स है क्लियर डिफरेंसेस इन मॉर्फोलॉजी फिजियोलॉजी और फेनोलॉजी, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इकोटाइप का जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन होते हैं विद इन ए स्पीसीज एडेप्टेड टू स्पेशल लोकल, तो एक स्पीसीज है वो एक अलग इन्वायरमेंट में चला गया, ठीक है, तो उसके हिसाब से वहाँ अडेप्ट कर गया, तो अडेप्ट करने के लिए क्या मोर्फोलॉजिकल चेंज हो सकता है, फिजियोलॉजिकल चेंज हो सकता है, फेनोलॉजिकल चेंज हो सकता है, इनमें से कोई दो हो सकता है, इनमें से कोई, या फिर तीनों के तीनों चीजें भी बदल सकती है, बट वो स्पीसीज क्या है, वो एक ही पॉपुलेशन से बिलोंग करता है जेनेटिकली, एक वो दूसरे इन्वायरमेंट में चला गया तो उसके हिसाब से उसके अंदर एडेप्टेशन मैनिफेस्ट किया डिफरेंस फॉर्म में, फिर मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल या फेनोलॉजिकल, तो ये सही है। इकोटाइप्स आर पोटेंशियली इनफर्टाइल विद अदर इकोटाइप्स ऑफ द सेम स्पीसीज, तो मतलब हाँ एक तरह से ये सही है, कैन डेवलप मतलब ये डेवलप कर सकते हैं पार्शियल रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है, they can develop partial reproductive isolation due to geographical separation, क्योंकि वो एक जियोग्राफी से दूसरे इन्वायरमेंटल मतलब एक जियोग्राफी से दूसरे इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसे जाएगा जब दूसरे एक जियोग्राफी से जगह, मतलब सपोज ये ट्रॉपिकल एरिया का है टेम्परेट में चला गया, लाइक दैट, ठीक है। तो क्या होता है जियोग्राफिकल सेपरेशन, ठीक है, डिफरेंट फ्लावरिंग टाइम हो जाएगा फिर उसके हिसाब से, और अदर मैकेनिज्म, ठीक है, अदर, ठीक है, मैकेनिकल मैकेनिज्म हो जाता है, उससे क्या होता है कि इनकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है when different इकोटाइप्स इंटरब्रीड, तो जब ओके क्या होता है पोटेंशियली इनफर्टाइल, इनफर्टाइल लिखा है पोटेंशियली, तो ऐसा हो जाता है क्योंकि कई बार वो वैसा रिजल्ट नहीं दे पाते या फिर उनकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, लेकिन ये कहना है कि 100% इनफर्टाइल हो जाते हैं दो इकोटाइप के, ठीक है, इकोटाइप्स, ठीक है, एक जो स्पीसीज है उसका इकोटाइप, तो ये गलत बात है, ये नहीं होता, पोटेंशियली हो सकता है, ये सही बात है। उसके बाद क्या है, तीसरा पॉइंट इकोटाइप्स डिफरेंस, ठीक है, इकोटाइप्स डिफरेंशिएशन जनरली अक्रस ओवर ए वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, हाँ तो ये सही बात है, इकोटाइपिक डिफरेंशिएशन जनरली अक्रस, हाँ सही बात है, इकोटाइप मतलब डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज एक्सपीरियंस डिफरेंट एनवायरमेंटल प्रेशर है अक्रॉस स्पीसीज रेंज, तो इसके कारण लोकल एडेप्टेशन के हिसाब से हो सकता है। नहीं, एक तरह से ये कह रहा है कि पूरी तरह से फर्टाइल नहीं है, पोटेंशियली फर्टाइल है, ठीक है, तो अगर इसमें देखा जाए तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, ए बी सी होगा बेस्ट, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब फास्ट फास्ट चलेंगे अब, ठीक है। उसके बाद है अल्फा डाइवर्सिटी, सॉरी अल्फा बेटा गामा डाइवर्सिटी, रिफ्लेक्ट एट द लेवल ऑफ, गामा डाइवर्सिटी किस पे करता है, लैंडस्केप चारों तरफ के पूरा मिला के ही करता है ना, इसके अंदर ये अल्फा अल्फा हो गए कई सारे, ये दोनों का बीच बीटा, ये पूरे को मिला के लैंडस्केप, ठीक है। ये इसके द्वारा कॉन्सेप्टलाइज किया गया था ये अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी लेवल ऑफ डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट, तो ये भी याद रखेंगे किसने दिया था, तो आर एच विटकर साहब ने, आर एच विटकर साहब ने, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट,
Which population, which of the following is related to logistic growth curve of population? Which of the following is related to logistic growth? लॉजिस्टिक ग्रोथ से रिलेटेड कौन सा है? तो dn by dt into rn इक्वल टू आर एन इंटू के माइनस एन बाई के। हाँ तो ये सही बात यही है। इसमें माइनस वन है, ये भी नहीं हुआ, ये तो सबसे सही है। ठीक है, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या डिस्क्राइब करता है? पॉपुलेशन का ग्रोथ लिमिट कि दैट इज ग्रोथ क्या है, वो लिमिटेड है बाई कैरिंग कैपेसिटी से ग्रोथ क्या है, लिमिटेड है एन बाई के। ठीक है, तभी एन बाई के है मतलब। और जो इसमें डी टी बाई डी एन बाई डी टी क्या है, वो रेट ऑफ ग्रोथ है। ठीक है, डी एन बाई डी टी उल्टे ही लिखे हुए हैं सब में। जाता है इसकी ये डिवाइड करके, अब सही है। ठीक है, मुझे लगा कि हाँ इसमें टाइपिंग में कुछ चल रहा है। ठीक है, अब सही है। ये के माइनस एन होता है डिवाइड करके होता है। तो के क्या होगा, कैरिंग कैपेसिटी हो जाता है। ठीक है, आपका एन पॉपुलेशन साइज ही है, तुमको पता है। आर क्या, इंक्रीजिंग रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये उस सब में ये आंसर सही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये ग्रोथ रेट है, ये एक्सपोनेंशियल है, और इसका ग्राफ लॉजिस्टिक कैसे बनता है, सिग्मॉइड। एस सेट सिग्मॉइड का क्यों, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी मतलब एक कैरिंग कैपेसिटी रीच होने के बाद पॉपुलेशन स्टेबल है क्या, हाँ वही इसी हिसाब से डेथ रेट बर्थ रेट लगभग ठीक है कि अब चल रहा है चल रहा है। हो सकता है कोई कैटास्ट्रोफिक आ जाए तो नीचे आ जाए, लेकिन क्योंकि वहाँ का रिसोर्स के हिसाब से अब इससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते। ये कब होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, एकदम रिसोर्स और स्पेस अनलिमिटेड है, कि आज लोग बढ़ते जा रहे हैं, स्पेस रिसोर्स बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। तो ये तो मतलब बड़े एनिमल्स में तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बड़े एनिमल्स में मोस्टली यही होता है, स्मॉल एनिमल्स में भी यही होगा, एक लिमिट के बाद ग्रोथ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, उसका क्या है, यहाँ पे मैच करना फॉरेस्ट टाइप से और सॉइल टाइप। ठीक, तो जो टाइगा है मतलब बोरियल फॉरेस्ट हो गया, तो मोस्टली क्या होता है, कोल्ड क्लाइमेट होता है। तो वहाँ पे जो सॉइल प्रोसेस होता है उस मोस्टली क्या होता है, पोर्टजोलाइजेशन होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो सॉइल होता है एसिडिक होता है, न्यूट्रिएंट लीस्ट होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोर्टजोल। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होगा, क्या होता है याद रखना है, एक टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ट्रॉपिकल एरिया हाई होगा, बारिश खूब होता है। इससे कारण क्या होगा, अगर बारिश नहीं खूब हो रहा है तो ऊपर का सॉइल का लेयर हमेशा वॉश आउट होता रहेगा, वेदरिंग होते रहेगा, लीचिंग होगा। तो वेदरिंग लीचिंग से क्या होगा कि वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट सारे तो बह गए। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट भी सारे चले गए। हम्म, उसको क्या बोलते हो, किस तरह का सॉइल होगा, रेड सॉइल, एटोसॉल। क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड बह जाते हैं। उसका टेम्परेरी ग्रास, ग्रासिंग में क्या होता है, मॉडरेट रेनफॉल होते हैं, ग्रास घास होते हैं। तो उसका क्या होता है, घास जल्दी वॉश आउट नहीं होने देंगे, तो क्या होता है, रिच ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेट हो जाएगा ग्रास रूट्स में। ठीक है, उससे क्या होता है, डीप डार्क और फर्टाइल सॉइल होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ठीक है, चलो चल, ब्लैक अर्थ। पूरा प्रेरीज यही है, जो व्हीट बॉल बोलते हैं इसको। अभी यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है ना, यूक्रेन में भी स्टेपी में ये इस तरह के सॉइल बहुत पाए जाते हैं, वो भी स्टेपी तो ग्रासलैंड ही है, टेम्परेट ग्रासलैंड। उसके बाद है बॉग। तो बॉग क्या है, एक वेटलैंड है जिसमें कि एनारोबिक वाटर लॉग्ड रहता है, एनारोबिक एसिडिक कंडीशन होगा, तो डिकम्पोजिशन स्लो होगा, उसके कारण क्या हो जाएगा, मोस्टली पिट, पिट। ठीक है, हिस्टोसोल्स भी बोलते हैं उसको। तो कौन सा सही होगा इसके हिसाब से, A1, B2, E4, D3। नेक्स्ट, अच्छा, ये इंडिया के दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब ये तो जो मैंने एक्सप्लेन किया वो है, और यहाँ पे मैंने इंडिया का दिया है कि कहाँ पे कौन से फॉरेस्ट के फैलाव होते हैं। वर्ल्ड लेवल में पूछा तो हो सकता है, कल इंडिया लेवल में पूछते, हु नोज।
चलते हैं नेक्स्ट। अब है अरेंज द इकोसिस्टम टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, मतलब ड्राई वेट के हिसाब से बताना। ठीक है, तो सबसे कम कहाँ होगा? डिजिटिफाइड एरिया में। यहाँ पे क्या होता है? लेस देन 1 kg पर मीटर स्क्वायर। कुछ हो ही नहीं रहा ना यहाँ पर, लैंडफॉल है, प्लांट ग्रोथ हो ही नहीं रहा है, तो सबसे ज्यादा बायोमास स्टैंडिंग क्रॉप क्या होगा? यहीं पर डिजिटिफाइड है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इन तीनों में तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में सवाना में। ठीक है, उनका भी मतलब प्रोडक्टिविटी हाई हो सकता है सीजन, जब बारिश का सीजन है खूब ज्यादा हो गया, बट ओवरऑल उनका जो ग्रासलैंड का होता है बायोमास लोअर होता है। ठीक है, वो क्योंकि वहाँ पे डोमिनेटेड ग्रासेज होते हैं, स्कैटर्ड ट्री, तो इनका लगभग होता है ग्रासलैंड्स का 1 to 5 kg पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद जाएगा ट्रॉपिकल स्वैम्प्स और मार्सेस। ठीक है, वेटलैंड्स तो हाईली प्रोडक्टिव होते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप्स भी भारी कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है यहाँ पे? ठीक है, वही 5 के आसपास होता है, 5 स्वैम्प्स में। और मतलब टॉपिक क्लासिकली ज्यादा होता है। उसके बाद क्या आ गया? बोरकेल। तो बोरकेल का जो होता है वो 10 to 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ये होता है बायोमास। ठीक है, फॉरेस्ट रोड से अच्छे खासे पुराने लंबे चौड़े। और उसके बाद तो ट्रॉपिकल तो सबको पता ही है, यहाँ पे ग्रेटर देन 40 kg तक होता है। ठीक है, तो जो स्टैंडिंग क्रॉप है बायोमास वो डिफरेंट है प्रोडक्टिविटी से। रेट ऑफ बायोमास जनरेशन, मतलब बायोमास जनरेशन जो है वो हो सकता है कि ज्यादा हो, लेकिन जरूरी नहीं कि जो स्टैंडिंग क्रॉप है बायोमास है वो ज्यादा होगा। ठीक है, ग्रासलैंड में क्या होता है? प्रोडक्टिविटी हाई होता है ग्रोइंग सीजन में, बट लोअर ओवरऑल स्टैंडिंग क्रॉप होता है कंपेयर टू फॉरेस्ट। यहाँ पे बायोमास एक्यूमुलेट हुआ है मैनी कई सालों से वुडी स्ट्रक्चर में हर जगह। ठीक है, तो इस कारण से तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ECDBA। GPA में चलता है। वो कहता है अरेंज मीन रेजिडेंस टाइम्स इन ईयर ऑफ फॉस्फोरस और फॉलोइंग इकोसिस्टम इन डिसेंबर। ये फॉस्फोरस साइकिल से रिलेटेड है। तो मीन रेजिडेंस टाइम, ठीक है, MRT क्या है? मीन रेजिडेंस टाइम किसी भी न्यूट्रिएंट को, ठीक है, एवरेज टाइम है, ये उस स्पेसिफिक इकोसिस्टम पूल में इतने समय के लिए रहता है, या तो बायोमास में, सॉइल में, ठीक है, बिफोर बीइंग ट्रांसफर्ड आउट टू अनदर इकोसिस्टम और अनदर सिस्टम। ठीक है, ये हमेशा अधिकतर किसी से रिलेटेड डिकम्पोजिशन रेट से, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग स्पीड से। लोअर अगर डिकम्पोजिशन है, न्यूट्रल साइकिल है, तो इसका क्या होगा? लॉन्गर मीन रेजिडेंस टाइम होगा। और फास्टर डिकम्पोजिशन न्यूट्रिएंट साइकिल है तो जल्दी जल्दी तुरंत तुरंत चेंज हो गया ना, ट्रांसफर हो गया दूसरे में, सिस्टम में। तो इसका होता है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि सबसे ज्यादा रेजिडेंस कहाँ है, उसके बाद सबसे, उसके बाद कम, उसके बाद कम। तो सबसे पहले इसमें कहता है इसमें सबसे तो क्या, बोरियल फॉरेस्ट। जो बोरियल फॉरेस्ट का कोल्ड टेम्परेचर होता है तो उसी कारण डिकम्पोजिशन वहाँ पे बहुत स्लो होता है। उससे क्या होता है? जो फॉस्फोरस होता है वो स्लोली डिकम्पोज होते हैं ऑर्गेनिक मैटर, तो बहुत समय तक वहाँ पे पड़ा रहता है। ठीक है, बायोमास में। तो बोरियल फॉरेस्ट टेम्परेचर के कारण होता है ना, डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाता है, स्लो होता है। उसके बाद है टेम्परेट कॉनिफरस, उससे कम ठंडा होता है, मतलब थोड़ा गर्म आ गया, कूलर होता है। ठीक है, और एसिडिक होता है डिसिडियस फॉरेस्ट से। तो इसी कारण क्या होता है? आपकी डिकम्पोजिशन स्लोअर होता है, डिसिडियस फॉरेस्ट से स्लो होता है, बट बोरियल फॉरेस्ट से ज्यादा होता है। तो दूसरे नंबर पे, तो उसके बाद क्या क्या? CB ही है, बट ठीक है, आगे देख सकते हैं। डी का है टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट। तो ये क्या होता है? मॉडरेट टेम्परेचर होता है, मॉइस्चर भी यहाँ पे होता है, तो ये फिर डिकम्पोजिशन और न्यूक्लियर साइकिल थोड़ा फास्ट होता है। उसका टॉपिक फर्स्ट, यहाँ तो हाई टेम्परेचर मॉइस्चर, यहाँ पे तो तुरंत तुरंत डिकम्पोजिशन होता है, न्यूक्लियर साइक्लिंग होता है, तुरंत लिया तुरंत छोड़ा, तुरंत लिया तुरंत छोड़ा। ये तो क्या हो जाएगा आंसर? CBDA। तो ये सब थोड़ा थोड़ा। ये बोरियल फॉरेस्ट में क्या होता है? फॉस्फोरस का लॉन्गेस्ट रेजिडेंस टाइम है। ठीक है, कई बार क्या होता है? 700 से 1000 साल। टेम्परेट में 300 से 700 साल।
उसके बाद क्या है, टेम्परेचर 100 से 360, और टॉपिक 30 to 90 ईयर्स, बहुत कम। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, वही सेम चीज फिर से आ गया, एवेंसिज्म न्यूक्लियम। तो ये है कि मतलब यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक हो चुका है। ठीक है, यूजीसी नेट का ये फेवरेट टॉपिक है। यार ठीक है, पूछ लेते हैं, कुछ नहीं आ रहा तो यही पूछ लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं मिला तो ये न्यूट्रलिज्म अभी पढ़े थे ना, 0 0। तो क्या है, नीदर स्पीशीज वेक्टर बाई एच ईच अदर, तो A1, बिल्कुल सही बात। तो फिर स्पीशीज ये इनहिबिट बी इज नॉट इनहिबिटेड, ये किसमें पढ़े थे कि एक को इनहिबिट होता है, ठीक है, हार्म होता है, और दूसरे में कुछ नहीं होता। तो पढ़े थे ना एवेंस में, बिल्कुल। स्पीशीज ए इज बेनिफिटेड व्हाइल बी भी कमर्स में पढ़े थे। उसका क्या, म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है। ये क्या होगा, A1 B1 C1 C3 B4, ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट, इमेजिन करना है यहाँ पे, दो पॉपुलेशन है, two population of a gharial, one is in Chambal river and other one is in Ganga. Now imagine two scenarios. The population breed separately, दोनों population separately breed करते हैं. Adults of both population migrate yearly to interbreed. Each scenario would result in a greater loss of genetic diversity if the Chambal river population is driven to extinction by anthropogenic factors. सिनेरियो ए सिनेरियो बी है, दो सिनेरियो दिए हुए हैं। तो पॉपुलेशन ब्रीड सेपरेटली करता है सिनेरियो में। ठीक है, बी में है कि एडल्ट्स और बोथ पॉपुलेशन माइग्रेट ईयरली टू इंटरब्रीड। तो किसमें रिजल्ट ग्रेटर लॉस होगा जेनेटिक डाइवर्सिटी का, इफ जंबल पॉपुलेशन इज ड्रिवन टू एक्सटेंशन बाय एंथ्रोपोजेनिक। तो सिनेरियो ए का पहले देखते हैं, इसमें कि ब्रीड सेपरेटली, तो पॉपुलेशन क्या है, कर रहा है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। तो क्या होगा, पॉपुलेशन अगर रिप्रोड्यूस है, दे विल एक्यूमुलेट डिस्टिंक्ट जेनेटिक डिफरेंसेस ओवर टाइम ड्यू टू ड्रिफ्ट और लोकल एडेप्टेशन के कारण। ठीक है, तो चंबल में जो पॉपुलेशन है वो यूनिक जेनेटिक वेरिएशन होगा। ठीक है, जो कि नॉट फाउंड या फिर रेयर होगा गंगा पॉपुलेशन में। तो चंबल पॉपुलेशन अगर सब एक्सटिंक्ट हो गया, एंड उसका, तो क्या होगा, तो उसका यूनिक जितनी जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी खत्म हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी परमानेंटली। ठीक है, तो ये एक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट लॉस को दर्शाता है। ठीक है, तो ग्रेटर लॉस बता रहे हैं हाँ। उसके बाद दूसरा सिनेरियो जो कि इंटरब्रीड करते हैं ईयरली, रेगुलर माइग्रेशन और इंटरब्रीडिंग बिटवीन द टू पॉपुलेशन क्या होगा, वो जीन फ्लो को मेंटेन रखेगा। Homogenize the gene pool means both populations share a large proportion of their genetic variation. ठीक है, while the Chambal population might have, ठीक है, some locally adapted genes, much of its genetic diversity would also be presented in the Ganga population due to ongoing exchange. ठीक है, ongoing से उसका genetic diversity वहाँ भी है। But if Chambal population goes extinct, the overall loss of genetic diversity to the species is less severe than scenario A. ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एलिलीज आर, जो एलिली है उस स्पीसीज में, और उस ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, आर स्टिल प्रिजर्व्ड इन सर्वाइविंग गंगा पॉपुलेशन। ठीक है, जो कि प्रायर जो जीन फ्लो हुआ है, ठीक है, इंटरब्रीडिंग के कारण, तो वो तो एलिली रह गए ना। ठीक है, तो उसके कारण से उतना सीवियरली हमारा लॉस नहीं होगा जितना हमारा सिनेरियो ए में होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, सिनेरियो ए। अब ये क्वेश्चन हमें क्या दिखाता है, कि वह दिखाता है कि जीन फ्लो कितना इंपॉर्टेंस है, पॉपुलेशन कनेक्टिविटी फॉर मेंटेनिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए जीन फ्लो कितना इंपॉर्टेंस है, फ्रेगमेंटेशन अगर हैबिटेट होता है, आइसोलेशन होता है पॉपुलेशन का, उससे क्या हमारा जीन फ्लो हो जाता है, रुक जाता है, स्लो हो जाता है, मेकिंग, ठीक है, आइसोलेटेड पॉपुलेशन ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं जेनेटिक लॉस के लिए, और वो अगर डिक्लाइन कर जाते हैं, एक्सटेंड कर जाते हैं जल्दी। तो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी में ये देखना पड़ता है कि ये सब कनेक्टिविटी रिस्टोर हो, मेंटेन हो पॉपुलेशन। Okay, now then let's go to the question number 61. If global temperature increases average temperatures of Earth by 4% in this century, which biome is most likely to replace tundra in same location as per climograph? ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण,
एवरेज टेम्परेचर अर्थ का राइज कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा, ठीक है, बायोम रिप्लेस करेगा, मोस्ट लाइकली रिप्लेस टुंड्रा, ठीक है। तो लेट्स सी टुंड्रा। तो ये तो पूरा ट्रॉपिकल हो गया, टेम्परेट हो गया, ठीक है। ये अपना बोरियल टाइगा हो गया, ठीक है, टुंड्रा हो गया। तो क्या है कि जो भी शिफ्ट होगा, ये एरिया सबसे कोल्ड है, ये हॉट, ये टंडा है। ये अगर कोल्ड हो रहा है तो इसकी ये थोड़ा हॉटर हो रहा है, तो ये वाला ही तो जाएगा। तो डेजर्ट कहाँ है? डेजर्ट मोस्टली यहाँ पे है, तो ये तो नहीं जाएंगे। टेम्परेट ग्रासलैंड है तो ये यहाँ से यहाँ जंप बहुत ज्यादा हो जाए। टेम्परेट ब्रॉडली फॉरेस्ट, यहाँ से यहाँ बहुत ज्यादा जंप हो जाएगा। तो नॉर्दर्न कॉनिफरस फॉरेस्ट, कॉनिफरस फॉरेस्ट यहाँ है, ये यहाँ से यहाँ जा सकता है। ये आंसर क्या होगा? नॉर्दर्न कॉनिफरस। तो ये इस तरह से देखने का तरीका है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। ये सब जो डिटेल्स दिए हुए हैं, ये कैसे क्यों होगा, ठीक है। So the MacArthur and Wilson Island equilibrium model present a balance between, जो मैक आर्थर और विल्सन का आइलैंड इक्विलिब्रियम है, वो किसके बीच बैलेंस, ठीक है, प्रेजेंट करता है? तो साइज ऑफ एन आइलैंड, ठीक है। तो पहले जानते हैं इक्विलिब्रियम होता क्या, ठीक है। तो ये कोर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आइलैंड बायोजियोग्राफी में मैक आर्थर और विल्सन का ये कोर कॉन्सेप्ट है। तो उसमें उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन आइलैंड रीचेज, यानी, ठीक है, नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन ऑन एन आइलैंड, कोई एक आइलैंड है, ठीक है, उस पर अगर नंबर ऑफ स्पीसीज रीचेज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, डिटरमाइंड बाय a dynamic balance between the rate of species immigration, ठीक है, एंड arriving and rate of species extinction, मतलब ये इधर से आया और इस यहाँ से एक्सटिंक्ट हो रहा है, जा नहीं रहा है, मतलब माइनस कर लो बस, मतलब सब तो कहीं से मेनलैंड से किसी आइलैंड से यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे एक्सटिंक्ट कर रहा है। तो जब इन दोनों के बीच, ठीक है, इक्विलिब्रियम हो जाता है, ठीक है, तो उसी को वही इक्विलिब्रियम मॉडल था कि ये दोनों एक दिन इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, ठीक है। इमिग्रेशन रेट और रेट ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन क्या है? इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो क्या है? सी और ई, ठीक है। इमिग्रेशन रेट क्या है? मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन द आइलैंड इंक्रीजेज, ठीक है। एक्सटिंक्शन रेट क्या है? नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन आइलैंड इंक्रीजेज, ठीक है। नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन आइलैंड, ठीक है, जो जो क्या बोलते हैं, स्मॉलर पॉपुलेशन होता है, साइज स्पीसीज का, वो क्या होता है, तो स्पीसीज वो एक्सटिंक्ट होने लगता है। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा यहाँ से स्पीसीज आते हैं तो रिसोर्स, ये तो आइलैंड छोटा सा है, लिमिटेड तो है नहीं सब कुछ, यहाँ पर कंपटीशन होता है रिसोर्स के लिए। तो जो कम्पीट कर पाया ठीक है, बाकी जो आउट कम्पीट हो गया वो, या तो उसकी पॉपुलेशन एकदम कम होते होते एक्सटिंक्ट हो जाता है। तो एक एक वही उसी के बीच इक्विलिब्रियम का है कि जितना आ रहा है कितना एक्सटेंशन हो रहा है, और उसमें डिफाइनिंग फैक्टर क्या है? रिसोर्स वहाँ का, ठीक है। उसका आइलैंड साइज क्या है? आइलैंड साइज फैक्टर है, ठीक है। इक्विलिब्रियम के लिए जो है वो फैक्टर है, साइज कितना है, ठीक है, वो फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है किसका? रेट ऑफ मिग्रेशन का, ठीक है। और स्पेसिफिक स्पीसीज एरिया का, स्पीसीज एरिया क्या है? इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, कि इंफॉर्मेशन क्या है? लार्जर एरिया, ठीक है, में ज्यादा स्पीसीज होते हैं, तो सही बात है, ठीक है। उनके जो लार्जर आइलैंड है वहाँ पे एक्सटेंशन रेट स्लो होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो इक्विलिब्रियम नंबर होता है स्पीसीज का वो बहुत ज्यादा होता है, फर्स्ट आइलैंड पे कम होगा, यही है। तो ये एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है इसका, इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन का, ठीक है। ये आइलैंड इक्विलिब्रियम मॉडल। चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है, यही था, ये मॉडल है, ठीक है।
इसको देखें ध्यान से तो समझ में आएगा तो, कि अगर कोई स्मॉल आइसोलेटेड आइलैंड है ये यहाँ पे तो वहाँ पे फ्यूअर स्पीसीज होंगी, ठीक है, और लार्जर आइलैंड क्लोजर टू ए सोर्स ऑफ ए कॉलोनिस्ट यहाँ पे। बट उसके बाद द पॉइंट एट विच इमिग्रेशन एक्सटेंशन कर्व्स इंटरसेक्ट प्रेडिक्ट क्विकली वेयर नंबर्स यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, ये स्मॉल का है, ये नियर का है, तो यहाँ पे आर का है, लार्ज का यहाँ पे किया, ठीक है, नियर का है और लार्ज का है, तो यहाँ इंटरसेक्ट किया, ठीक है, लार्ज है, क्या है, ठीक है, आइलैंड, तो यहाँ पे देखिए स्पीसीज ज्यादा हो गया, ठीक, नेक्स्ट चलते नेक्स्ट, यही सेम चीज एक्सप्लेन किया इधर। उसका था मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, ठीक, तो इसमें क्या है, ये तो वेटलैंड्स है, तो तमिलनाडु कोई वेटलैंड कहाँ आएगा, तमिलनाडु कहाँ पे है, केरला में, ठीक है, उसका क्या पॉइंट कैलिबर पहले भी पढ़ चुके हैं, कहाँ है, तमिलनाडु, तो डी का वन और बी का थ्री, हम देखते हैं इससे रिजल्ट आएगा, डी का वन बी का थ्री, डी का वन बी का थ्री, नहीं आ रहा, डी का वन बी का थ्री यहाँ भी है, डी का वन यहाँ पे है, ठीक है, उसके बाद हमें बनाना है कंजली लेक, ये कहाँ पे है, तो ये है पंजाब में, ठीक है, अब तो आंसर आ जाना चाहिए, डी का ए का टू, थर्ड आंसर, दूध सागर लेक कहाँ हो गया, त्रिपुरा में, ये सब वेटलैंड है, ठीक है, रामसर साइट्स, चलते हैं नेक्स्ट, रामसर साइट की लिस्ट याद कर लेंगे, हर साल एक आता ही है, अगर पिछली बार नहीं पूछा तो इस बार तो पक्का ही पूछा, एंड द प्रोसेस ड्राइविंग एंड एक्सटेंशन वर्टेक्स इन स्मॉल पॉपुलेशन, ठीक है, अरेंज द प्रोसेस ड्राइविंग एंड एक्सटेंशन वर्टेक्स इन स्मॉल पॉपुलेशन, तो इसको हम समझते हैं, पहले इससे, एक स्मॉल पॉपुलेशन था, उसमें इनब्रीडिंग होता है, जेनेटिक डिफेक्ट होता है, उसके कारण क्या होता है, लॉस ऑफ जेनेटिक वायबिलिटी होती है, फिर क्या होता है, रिडक्शन इन इंडिविजुअल फिटनेस होता है, फिर क्या लोअर रिप्रोडक्शन होता है, हायर मोडालिटी हो जाता है, और फिर वो पॉपुलेशन स्मॉल हो जाता है, ठीक है, ये स्मॉल फ्रेगमेंटेड आइसोलेटेड पॉपुलेशन कैसे बनता है, तो वो हैबिटेट लॉस से हो गया, पॉल्यूशन से, ओवर एक्सप्लॉइटेशन से, या एक्जोटिक स्पीसीज यूज करना, ठीक है, तो पॉपुलेशन छोटा हो जाता है, संख्या, तो उनके कारण इनब्रीडिंग होती है, सेम चीज, उसका उनका नंबर और घट जाता है तो वो स्पीसीज के बाद एक्सटिंक्ट कर जाती है, ठीक है, कैटास्ट्रॉफ इन्वायरमेंटल वेरिएशन डेमोग्राफिक स्टोकेस्टिसिटी आ जाता है, तो ठीक है, चलते क्वेश्चन पे अरेंज करना है, तो इसमें हमने पहले क्या देखा, स्मॉल पॉपुलेशन बाद में आता है, पहले क्या आएगा, इनब्रीडिंग एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, उससे क्या होता है, तो लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी होगा, उसके कारण क्या होगा, लोअर इंडिविजुअल फिटनेस होगा, ठीक है, एंड पॉपुलेशन एडेप्टेबिलिटी हो जाएगा, उसका क्या होगा, लोअर रिप्रोडक्शन और हाई मोर्टेलिटी हो जाएगा, ठीक है, उसके कारण क्या हो जाएगा, स्मॉलर पॉपुलेशन हो जाएगा, स्मॉल से स्मॉल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर, बी सी डी, बी सी डी, ये सही, चलते नेक्स्ट, ठीक है, एक रैंडम सैंपल है, 180 इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन वर कैप्चर्ड, marked entities, after a few weeks a second set of 44 individuals were collected, out of 44 individuals 7 were marked, the estimated population size, तो वही मार्क, ये क्या बोलते हैं अपना, लिंकन, ठीक है, लिंकन पीटरसन इंडेक्स के हिसाब से जो मार्क कैप्चर मेथड है उसी का ये, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला भी देख चुके हैं, यहाँ देखते हैं सीधे, सब कुछ वैल्यू दिया, बस फॉर्मूला पुट करना, इक्वल्स टू n इंटू n बाई वन, ठीक है, तो चलते हैं, तो सॉल्व करते हैं, तो n कितना हमारा 180, n कितना है, n जो लास्ट सेकंड सैंपल में देखते हैं वो है 44, और उसमें से कितने मार्क थे, 7, तो पहले शुरू में 180 को हमने कैप्चर किया, मार्क किया, उसी बार में 44 हमको मिले, इंडिविजुअल मिले, उसमें से 7, तो ये आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, 7920/7 इक्वल्स टू 1131,
4 3। तो 4 3 को हम निकाल, क्योंकि पूरा होल होगा ना, पार्ट पार्ट में कैसे होगा। तो सबसे करीबी इसके क्या है, 1131, 1131। तो पॉपुलेशन साइज क्या है, इमीडिएट पॉपुलेशन साइज 1131। ठीक है, नेक्स्ट। उसका क्या क्वेश्चन करता है, अरेंज द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन ऑर्डर ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन इन द इवोल्यूशन ऑफ ब्रांच इकोलॉजी यूनिट। तो ये करना, ये पता है तो ठीक है, नहीं तो मुश्किल है कि कब किसने क्या दिया। ठीक है, ये पता होना जरूरी है। इसमें सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले जेफरे आता है। ठीक है, ये लगभग 1800 में है। ठीक है, इन्होंने फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे जिन्होंने रिलेशनशिप स्टडी किया ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का। इन्होंने क्या कम टर्म कॉइन किया, इथोलॉजी। इथोलॉजी उनको आ सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आएंगे अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, ये 1834 से 1919 तक लाए हुए। इन्होंने टर्म क्या कॉइन किया, अर्नेस्ट हैकल साहब ने, इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी। उसके बाद क्या है, उसके बाद आएंगे आर्थर। ठीक है, अच्छा इनके पहले ही आ जाएंगे ये हैंस रिटर। हैंस रिटर उनके पहले ही आ जाते हैं। ठीक है, हैंस रिटर उनके पहले ही आ जाते हैं। सॉरी, ये एक हो गया। अच्छा ये ई आएगा ना, ये दो हो गया, ये तीन हो गया। ठीक है, ये तीन आ गए। उसके बाद आएंगे टेंसले साहब। ठीक है, जो कि मिड 20th सेंचुरी तक रहते हैं। मतलब लाइफ, इन्होंने टर्म किया था कॉइन, इकोसिस्टम। ठीक है, यहाँ से जर्मन थे, जर्मन। उसके बाद ओडम आता है। ओडम क्या है, उनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है? तो ये होगा DEBAC, DEBAC। चलते नेक्स्ट, क्या देख लेंगे, इसी फिर ऑर्डर बन सकता है, एक दो और मतलब देख सकते हैं, इसका नाम उसके अकॉर्डिंग ये है। तो ये पूछ रहा है कि चाहिए प्राइमरी प्रोड्यूसर कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू देम to the net production. And this very topic this is of 10% for each link. You know, what would be the energy available to the tertiary consumer in idealized। ठीक है, आइडलाइज, तो आइडलाइज में हमको पता है 10% रूल। तो सनलाइट अवेलेबल कितना है, 100 मतलब 1 मिलियन जूल है ना। अच्छा 1 मिलियन जूल है, तो 1 बिलियन जूल है, तो इसका 1% हम लें तो कितना हो जाएगा, 1% है ना इफिशियंसी। तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 10,000 जूल। 10,000 जूल आ गया, क्योंकि सिर्फ 1% लेना है। ठीक है, अब यहाँ से ये 1% इफिशियंसी है, तो इतना प्राइमरी जो प्रोड्यूसर उनके पास है। अब यहाँ से क्या चलेगा, एनर्जी प्राइमरी प्रोड्यूसर लेवल पे इतना है, उसके बाद अब 10% रूल चलेगा। ठीक है, तो एनर्जी ट्रांसफर टू प्राइमरी कंज्यूमर, इसका 10%, तो कितना हो जाएगा 1,000 जूल। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, 10%, तो इसका कितना हो जाएगा 100 जूल। और टर्सरी के पास आता तो कितना बचेगा 10 जूल। आंसर क्या, 10 जूल। ये कई लोग यहाँ पे सीधे कर देते हैं कि हाँ गलत, जल्दी जल्दी में, कि 1 मिलियन का 10% होगा तो 1 लाख है। नहीं भाई, ये नहीं करना है, 100,000 जूल नहीं, ये 1% है एफिशिएंसी। चलते नेक्स्ट। Which of the following is not linked to the biodiversity loss and ecosystem services? तो पहला है इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म फॉर बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है, तो ये इंटर गवर्नमेंट जो, ये क्या है, ये इंटरनेशनल बॉडी है जो कि एसेस करता है स्टेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, ये डायरेक्टली रिलेटेड है। उसके बाद है कमीशन ऑन इकोलॉजिकल
ये इकोसिस्टम मैनेजमेंट CEM। तो ये क्या है, ये जो 6 कमीशंस है IUCN के अंडर में, क्योंकि उसमें से एक है। इसका वर्क इकोसिस्टम मैनेजमेंट में है, बट इनहेरेंटली ये इन्वॉल्व बायोडेटरी सर्विसेज भी इनहेरेंट करता है, बट इसका प्राइमरी फोकस क्या है, ब्रॉडर इकोसिस्टम मैनेजमेंट प्रिंसिपल में प्रैक्टिस विद इन द IUCN फ्रेमवर्क। तो ये लिस्ट डायरेक्टली है, ठीक है, आंसर यही है। उसका तो मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पता ही है कि उसी के लिए था, मेजर इंटरनेशनल असेसमेंट है, फोकस्ड स्पेशली ऑन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इकोसिस्टम। उसके बाद है इकोसिस्टम इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, टीब। तो ये भी सबको पता ही है, ये भी है, ठीक है। मेकिंग नेचुरल्स वैल्यू विजिबल, ये भी इकोसिस्टम के एरिया में काम करता है। चलते हैं नेक्स्ट, उनके डिटेल्स दिए हुए। कैसे ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखना है, इसको arrange the following classes in increasing order of percentage geographical area as per report in India State of Forest Report 2021 आया, उसके बाद हर 2-2 साल पे आता है फर्स्ट जीरो। तो हमेशा ध्यान इसको देखते रहेंगे, किसी साल भी ये सवाल आ सकता है। हाँ सही है, ठीक है, अभी किसके में आया किस में नहीं आया। ठीक है, तो इसमें आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, CDEAB, CDEAB, CDEAB। ठीक है, हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग वाले में हमारा जो स्क्रब एरिया है ये लगभग 1.2% है, सबसे कम। तो ट्री कवर जो हमारा है वो 2.91% ही है बस। उसके बाद हमारा डेंस जो फॉरेस्ट है वो 3.04% है, कितना खराब बात है। उसके बाद हमारा मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है वो 9.33% है, और हमारा ओपन जो फॉरेस्ट है, ठीक है, वो 9.344। तो ये यहाँ तो कुछ समझ में आता है, ये इतना ज्यादा नहीं, ये 3% होना चाहिए था, और ये 9%। ठीक है, बट ठीक है, जब कोई ध्यान ही नहीं देता तो क्या ही कर सकते, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट आर मच मोर इम्पोर्टेंट rather than ओपन फॉरेस्ट। ठीक है, कार्बन स्टॉक के हिसाब से या हर तरह के देख सकते हैं। तो ये डिटेल्स, उसके बाद क्या क्या डिफेंसिव एडेप्टेशन और उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या। ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, शो करते हैं वाइड रेंज ऑफ एडेप्टेशन, ठीक है, डिफेंसिव के। ठीक है, कई सारे मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं, कुछ केमिकल डिफरेंस होंगे, कुछ के बिहेवियरल डिफरेंस होंगे, ठीक है, कुछ के कलरेशन बेस्ड डिफरेंस होते हैं। ठीक है, किसी के एपोस्टोमेटिक कलरेशन मतलब अलग तरह। इसमें सबसे पहले क्या, मैकेनिकल डिफरेंस। तो क्या है इसमें से क्या है, हेजहॉग, क्योंकि उसके क्या होते हैं, शार्प स्पाइंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद है केमिकल डिफरेंस। केमिकल डिफरेंस कौन करता है इसमें से बता होना चाहिए, तो ऑक्टोपस क्या करते हैं, वो इंक रिलीज करते हैं, ठीक है, प्रेडेटर को कंफ्यूज करने के लिए। इसका था एपोस्टोमेटिक, एपोस्टोमेटिक एपोस्टोमेटिक कलरेशन, ठीक है, वार्निंग कलर्स कौन देता है, ब्राइट कलर्स एकदम कंट्रास्टिंग पैटर्न, तो ये सिनाबार मॉथ। उसके बाद क्रिप्टिक कलरेशन कौन करता है, तो बुश क्रिकेट्स। ठीक है, क्रिप्टिक कलरेशन को ही कैमोफ्लेज बोलते हैं। चलते नेक्स्ट, ये सब दिए हैं। तो द बिग डेप्थ इन टू स्पीसीज ऑफ, ठीक है, गैलापागोस फिंचेज, ठीक है, जियोस्पीजा, फुली जिरोसा और जियोस्पीजा फोर्टिस आर सिमिलर इन एलोपैट्रिक पॉपुलेशन बट हैव डाइवर्ज इन, ठीक है, सिम्पैट्रिक पॉपुलेशन। दिस ये किस चीज का एग्जांपल है, ठीक, ये सिमिलर है एलोपैट्रिक पॉपुलेशन बट हैव डाइवर्ज इनटू, डाइवर्ज हुआ, डाइवर्जन हो गया, एक इसमें दो सिम्पैट्रिक पॉपुलेशन कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, ये फिनोमेना, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंस अमंग सिमिलर स्पीसीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन ओवरलैप जियोग्राफिकली, ठीक है, सिम्पैट्रिक आर क्या होते हैं, वो एसेंचुएटेड होते हैं इन रीजन वेयर दे ओकर बट आर मिनिमाइज्ड और लॉस्ट वेयर देयर डिस्ट्रीब्यूशन डू नॉट ओवरलैप, जहाँ पे ओवरलैप नहीं करता है। दिस डाइवर्जेंस इज थॉट टू रिजल्ट फ्रॉम
इवोल्यूशनरी प्रोसेस, ठीक है, इवोल्यूशनरी प्रेशर होता है गिवन बाय इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, a every individual that using resource less utilized by the competing species, ठीक है। तो वो डाइवर्जेंस है इन वीक डेप्थ में, ये कैरेक्टर से रिलेटेड टू फीडिंग है, ठीक है। तो ये क्लासिक एग्जाम्पल है कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट का, ये पीटर और रोजमेरी ग्रांड द्वारा मतलब स्टडी किया गया। उसका जो एक्सप्लॉइटेशन तो मतलब ये तो हो गया, बाकी ऑप्शन देख लो। एक्सप्लॉइटेशन क्या है, जो स्पीसीज इंटरेक्शन होता है वो एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है कंज्यूमिंग और यूजिंग द रिसोर्स नीडेड बाय अदर। तो उसका सेवन पैराटी का होता है। तो ये लाइफ हिस्ट्री है, लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटेजी है कैरेक्टराइज बाय सिंगल प्रोडक्टिव एपिसोड बिफोर डेथ। जैसे कि सैल्मन फिश हो गई, सेंचुरी प्लांट हो गया, तो इसमें एक ही बार। इसका उल्टा होता है इटेरोपैरेटी, जिसमें मल्टीपल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं, जिसमें ह्यूमन बींग्स है एग्जाम्पल कह सकते हैं, और भी बहुत सारे एनिमल्स। उसका होता है कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, इसमें क्या होता है टू स्पीसीज कम्पीट करते हैं सेम लिमिटिंग लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए, और कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो क्या होगा लास्ट में कि वन स्पीसीज विल इवेंचुअली एलिमिनेट द अदर, ठीक है। अब कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन भी आप हो जाएगा तो क्या होगा, तो वो रिड्यूस कर सकता है कंपटीशन को, और पोटेंशियली ये कर सकता है कि कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन ना हो। तो ये हेल्प किया यहाँ पे कि दोनों स्पीसीज रहे कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन का हर किसी को, ठीक है। चलते हैं। तो उसका क्या इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज बिलोंगिंग टू फैमिली, ठीक है, एस्ट्रेसी आर इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज बिलोंगिंग टू फैमिली एस्ट्रेसी। तो कौन कौन से एस्ट्रेसी है, तो हमारा पहला ही है अथेनियम है दूसरा क्रोमोलेना है, ये भी है, और उसके बाद मिकानिया भी है। सेल्विनिया मोलेस्टा क्या है, तो सेल्विनिया मोलेस्टा एक फर्न है, लेकिन ये फैमिली क्या है, सेल्विनियसिया है। तो इसमें नहीं है। लैंटिना कैमरा कौन सा है, ये भर्वेनेसिया फैमिली से। तो ये दोनों तो नहीं होगा, भर्वेना फैमिली से हो गए, ये सब नहीं। तो पहला तो ए बी, ठीक है। ऊपर चलते नेक्स्ट, यहाँ पर डिटेल्स दिए हैं, अगर थोड़ा और डिटेल पढ़ना, ठीक है। मतलब वहाँ के लिए नेटिव है, वहाँ के लिए सही है उस क्लाइमेटिक जोन के लिए, लेकिन दूसरे जगह जहाँ पे आते हैं तो फिर वहाँ के लिए वो इन्वेसिव हो जाते हैं। एंड द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ डिजल ऑक्सीजन, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें करना है, ठीक है। इन द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ डिजल। अच्छा, इंक्रीजिंग कहाँ पे बढ़ते जा रहा है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, तो सबसे हम्म, तो इसको थोड़ा देखते हैं। तो डिजिटल ऑक्सीजन क्या क्रिटिकल इंडिकेटर है वाटर क्वालिटी का, इकोसिस्टम हेल्थ का, सबको पता है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना था, डीओ लेवल लोएस्ट टू हाईएस्ट डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड का, डिजिटल ऑक्सीजन का सॉरी। तो इसमें क्या होगा, इसमें हाइपर यूट्रॉफिक लेक होंगे, उसके बाद क्या होगा यूट्रॉफिक लेक होगा, उसके बाद क्या होगा मेसोट्रॉफिक, उसके बाद ओलिगोट्रॉफिक। तो मेसोट्रॉफिक ओलिगोट्रॉफिक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी बी सी ए, डी बी सी ए। चलते हैं नेक्स्ट, ये तो आसान है। ठीक है, बिकॉज कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ऑफ प्लांट टिश्यू इज, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो ये हमेशा हाइयर होता है बैक्टीरिया से, याद रखना हमेशा कार्बन रेशियो बैक्टीरिया से हाइयर होगा। तो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो क्या रिफ्लेक्ट करता है, द रिलेटिव अमाउंट ऑफ कार्बन नाइट्रोजन ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ये क्रूशियल क्यों है, तो कार्बन नाइट्रोजन क्रूशियल होता है डिकम्पोजिशन प्रोसेस में,
प्लांट टिश्यू में क्या होता है, रिच इन कार्बन बेस्ड स्ट्रक्चरल कंपाउंड होता है, जैसे सेलुलोज हो गया, लिग्नाइन हो गया, ठीक है। उसका बैक्टीरिया में हाई नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट होता है, बट फिर भी वो कम होता है, इससे प्लांट टिश्यू से। तो बैक्टीरिया का कितना होता है, बैक्टीरिया का टिपिकल जो कार्बन रेशियो होता है वो होता है 4:1 का या 60:1 का, ठीक है। ये 60:1 होता है, या 4:1 कह सकते हैं, 4:1 to 6:2। और प्लांट टिश्यू का कितना होता है, ये 20:1 से लेके, सॉरी 100:1। और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का कितना होता है, फंजाई का है ना, हाँ फंजाई, 10:1 से 15:1। और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का कितना होता है, तो 5:1 से 15:1 तक रहता है। और उसके बाद एक्वाटिक एनिमल्स का कितना होता है, सॉरी एक्वाटिक एनिमल्स का कितना होता है, तो उसी का 5:1 to 15:1 रहता है। नेक्स्ट, एक्वाटिक का 4:1 to 10:1। उसको बाद यहाँ पे, अच्छा ये C3 स्पीसीज, C4 स्पीसीज, ये सब यहाँ पे आ गया। ये सब क्या होता है, मतलब सोचेंगे C4 C3 क्या होता है। तो C3 स्पीसीज, तो C3 स्पीसीज जैसा होता है, राइस हो गया, व्हीट हो गया, सोयाबीन, ये क्या करते हैं, ये जो भी इसको एंजाइम को यूज करते हैं इनिशियल कार्बन फिक्सेशन के लिए, ठीक है। ठीक है, जो भी इसको, ठीक है, क्या करता है, बाइंड करता है ऑक्सीजन को, स्पेशली एट लो CO2 और हाई O2 लेवल पे और हाई टेम्परेचर में, ठीक है। तो इंक्रीज करेंगे CO2 कंसंट्रेशन का, तो इंक्रीज करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन C3 प्लांट्स, एक सेचुरेशन पॉइंट तक, ठीक है। तो C3 चीज का इंक्रीज रेट ऑफ इंक्रीज CO2 कंसंट्रेशन, तो ये सही बात है। तो C4 स्पीसीज क्या करता है, C4 स्पीसीज हमारा, तो C4 स्पीसीज का क्या नाम है, तो उसमें होता है, उसमें क्या होता है, प्रिलिमिनरी कार्बन फिक्सेशन होता है, स्टेप यूजिंग PEP कार्बोक्सिलेज, ठीक है, PEP कार्बोक्सिलेज, ठीक है। वो क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करता है, ओके, यूजुअली बाइंड नहीं करता है। उसमें क्या करता है, इन उसके कारण क्या होता है, जो चेंज होगा वो क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट चेंज होगा इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विद इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन, तो उतना चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा आता है, कॉर्न है, शुगर केन है, इसके एग्जाम्पल है। उसके बर्ड्स एंड बैट्स क्या है, तो बर्ड्स एंड बैट्स एग्जाम्पल है पैरेलल इवोल्यूशन की, ठीक है, सॉरी सॉरी, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की, ठीक है, बर्ड्स हम, अरे और मार्सुपियल क्या है, मार्सुपियल, ठीक है, और प्लांसेटल मैमल, सॉरी ये प्लांसेटल मैमल से यहाँ, ये वाला जो है यहाँ पे था, यहाँ पास चला, यहाँ पे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन था बर्ड्स और बैट्स में, और मार्सुपियल और प्लांसेटल एनिमल्स में क्या है, यहाँ पे पैरेलल एवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। प्लांसेटल मैमल्स के ऐसे एग्जाम्पल हो गया, ओल्स हो गए, कैट्स हो गए, रोडेंट्स हो गए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 4 का ए आ गया नहीं, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, लास्ट। चलते नेक्स्ट, उसमें सैनन वीवर इंडेक्स टेक्स इन अकाउंट, सैनन वीवर इंडेक्स किस चीज को अकाउंट में लेता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्पीसीज रिचनेस को अकाउंट में लेता है, ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ कम्युनिटी। उसके बाद स्पीसीज क्या करता है, इवेंटनेस या फिर इक्वेटेबिलिटी बोल सकते हैं, उसको लेता है। ये रिलेटिव अबंडेंस क्या है डिफरेंट स्पीसीज का, ये हाउ, मतलब मेजर करता है कि सिमिलर पॉपुलेशन, हाउ सिमिलर इन द पॉपुलेशन साइज ऑफ ईच स्पीसीज आर, ठीक है। इसका आंसर है ए और बी। ये सिर्फ इंडेमिक स्पीसीज का रिसर्च का नहीं, सबका लेता है, इनवेसिव नहीं, जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं, क्या करना, ये उसका फॉर्मूला है।
चलता है। And the following in increasing order of percentage of net primary productivity consumed by herbivores. हाँ ये तो आसान होना चाहिए। In the following in increasing order percentage of net primary productivity consumed by, ये प्राइमरी प्रोड्यूस हो रहा है और उसको हर्बीवोर प्रोड्यूस हो रहा है और हर्बीवोर्स उनको कितना कंज्यूम कर रहा है। तो मैंग्रोव्स का है तो सबसे पहले इसमें जो फाइटोप्लैंक्टन होता है, तो फाइटो ये प्लांट होता है फाइटोप्लैंक्ट, तो इसके ठीक है प्लैंक्टन जो होता है फाइटोप्लैंक्टन, तो ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बॉडी बहुत ही फास्ट करते हैं, इसमें कोई खास इनके अंदर स्ट्रक्चरल डिफरेंस या कुछ हो नहीं होता और बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, तो इनका कंजम्पशन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, कौन करता है, जो प्लैंक्टन, ठीक है, जो हर्बीवोर्स होता है, और कंजम्पशन रेट बहुत ज्यादा होता है, कभी कभी तो 90% तक चला जाता है। ठीक है, तो ये तो सबसे ज्यादा हो गया, हमें करना था कम का। उसके बाद है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी हाई है लेकिन बायोमास क्या है, लॉक्ड है वुड्स में, और लीव्स में कई बार क्या केमिकल डिफरेंस होता है, तो यहाँ का हार्बोरी जो खाने का है हार्बिवोरी रेट है वो क्या जनरली लो है टू मॉडरेट है। अब मैंग्रोव्स को देखते हैं, तो मैंग्रोव के साथ दिक्कत क्या है कि हाई सॉल्ट कंटेंट होता है, लीव्स काफी टफ होती है, केमिकल डिफरेंस होता है, जैसे टैनिन होता है, ये सब होता है, तो इसमें भाई यहाँ पे तो नहीं आते हैं हार्बिवोर्स करते नहीं है, बहुत कम, ठीक है, 5 to 10% यहाँ पे। उसके बाद है ग्रासलैंड, तो ग्रासलैंड का क्या है, रिलेटिवली प्लेटेबल है, आसानी से खाया जा सकता है, और न्यूट्रिएंट रिच भी होते हैं वुडी प्लांट्स के कंपेयर में, और लार्ज हर्बीवोर पॉपुलेशन को कंज्यूम करते हैं और सपोर्ट करते हैं। यहाँ का कंजम्पशन रेट 30 to 60% है। तो सबसे कम किसका हो गया, यूरोप का। उसके बाद क्या हो गया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उसके बाद ग्रासलैंड का, बस फाइटर चलिए तीन दिए। तो इस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। उसके बाद रेशियो बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस इन एनिमल टिश्यू एंड इट्स डेली डाइटरी इनटेक ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल भी एक्सप्रेस्ड है। इसको कैसे एक्सप्रेस होता है, तो ये इसको बोलते हैं बायो ट्रांसफर फैक्टर, ये रेशियो बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस इन एनिमल टिश्यू एंड इट्स डेली डाइटरी इनटेक ऑफ ए टेरेस्ट्रियल एक्सपोजर, बायो ट्रांसफर फैक्टर, इसको बीटीएफ भी बोलते हैं। ठीक है, तो बीटीएफ क्या है, तो ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस लाइक कंटेमिनेटेड न्यूट्रिएंट फ्रॉम डाइट, जैसे खा रहे हैं सॉइल या फॉडर इनटू टिश्यू ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। बीटीएफ को कैसे हम कंसिडर करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ टिश्यू, कंसंट्रेशन इन टिश्यू डिवाइडेड बाय डेली इंटेक रेट ऑफ कंसंट्रेशन इन डाइट होता है। दूसरा क्या है, बायो कंसंट्रेशन फैक्टर, दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या पहले से ये पूछते हैं। बायो कंसंट्रेशन फैक्टर क्या होता है, ये एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में प्राइमरी यूज होता है, ये मेजर क्या होता है, एक्युमुलेशन ऑफ केमिकल फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर इनटू ऑर्गेनिजम्स टिश्यूज। ठीक है, उसके बाद क्या है पार्टीशन कोफिशिएंट, ये क्या है, एक जनरल केमिस्ट्री टर्म है जो डिस्क्राइब करता है हाउ ए सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ बिटवीन टू मिसिबल फेज। उसके बाद टॉक्सिकेंट कंसंट्रेशन है, ये मतलब अमाउंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए मीडियम, जैसे टिश्यू में या वाटर में। ठीक है, चलते हैं। बीटीएफ का मोस्टली यूज क्या है, इसका मोस्टली यूज क्या है, ये क्रूशियल है रिस्क असेसमेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हाउ कंटेमिनेंट्स मूव थ्रू टेरेस्ट्रियल फूड चेन, ये कंटेमिनेटेड सॉइल टू प्लांट देन हर्बीवोर्स देन पोटेंशियल टू ह्यूमन, उसको जानने के लिए चलते हैं। ये डिटेल्स है, you can read in which components of biosensor does the whole bacterial cell work। ठीक है, in which component of biosensor does the whole bacterial cell work, कहाँ करता है, रिकॉग्निशन एलिमेंट है। ठीक है, उसमें कई सारे कंपोनेंट होते हैं बायोसेंस, एक क्या होता है, तो एक होता है एनालिट, एनालिट क्या काम क्या है, सब्सटेंस जो डिटेक्ट होने वाला है। दूसरा है रिकॉग्निशन एलिमेंट होता है, रिकॉग्निशन एलिमेंट होता है। ठीक है, बायो रिसेप्टर भी जिसको बोलते हैं, वहां पे क्या होता है, वो इंटरेक्ट करता है, बाइंड करता है, रिएक्ट करता है एनालिट के साथ। ठीक है, और ये क्या करता है, ये ये क्या हो सकते हैं, एंजाइम हो सकते हैं, एंटीबॉडी हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं। होल बैक्टीरियल सेल यूजेज इट्स मेटाबॉलिक प्रोसेस और सरफेस रिसेप्टर टू रिएक्ट विद द एनालाइट, तो रिकॉग्निशन एलिमेंट है। उसके बाद बात आती है ट्रांसपोर्टर्स की, वो क्या करता है, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन हुआ, बाइंडिंग इमेज चेंज इन पीएच हुआ, ऑक्सीजन कंजम्पशन हुआ,
उसको मेजरेबल फिजिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ट्रांसड्यूसर का काम है। ठीक है, ट्रांसड्यूसर में उसके बाद आता है। ठीक है, उसके बाद आ गया बात, उसके बाद सिग्नल प्रोसेसर का। जो सिग्नल आया होता है उसको प्रोसेस करता है, एम्पलीफाई करता है ट्रांसड्यूसर सिग्नल को। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, डिस्प्ले यूनिट, शो द रिजल्ट। ठीक है, एनालाइट के बाद क्या आता है, बायो रिसेप्टर आता है, जिसको कि रिकॉग्निशन एलिमेंट भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा ट्रांसड्यूसर आता है, जो इंटरेक्शन ये सब जो हुआ उसको एक वो एनालाइज करता है और मेजरेबल फिजिकल सिग्नल के रूप में कन्वर्ट करता है ट्रांसड्यूसर। उसके बाद आ जाता है सिग्नल प्रोसेसर एम्पलीफायर, वो जो सिग्नल आया रहता है सिग्नल, जो सिग्नल प्रोसेसर है वो क्या करता है, एम्पलीफायर वो जो यहाँ से आता है उसको रीड करता है, उसको एम्पलीफाई करता है, और डिस्प्ले यूनिट तो लास्ट में होता है कि रिजल्ट को दिखाता है। ठीक है, उसको रेडिएशन पर्टेनिंग टू वेवलेंथ सुटेबल फॉर फोटोसिंथेसिस इज अबाउट। रेडिएशन पर्टेनिंग टू वेवलेंथ सुटेबल फॉर फोटोसिंथेसिस कितना है, तो ये सबको पता, 44% ऑफ इंसिडेंट शॉर्ट वेव रेडिएशन, 40%। उसका क्या करना, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीशीज रिसर्च। किसका स्पीशीज रिसर्च सबसे ज्यादा है और किसका से कम है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स है। ठीक है, तो जहाँ से शुरू हो रहा है वो सही है, PABED। इसके बाद फंजाई है, फंजाई के बाद आपके वास्कुलर प्लांट्स हैं, उसके बाद क्रस्टेशियंस है, उसके बाद वर्टेब्रेट्स। ठीक है, इनके अराउंड 1 मिलियन प्लस इंसेक्ट्स। ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है इंसेक्ट, सेंटीपेड्स और मिलीपेड्स। उसके बाद फंजाई है। ठीक है, हंड्रेड्स थाउजेंड होते हैं, मतलब इसके भी मतलब लाख समझिए। उसके बाद वास्कुलर प्लांट्स होते हैं, और उसके बाद क्रस्टेशियंस होते हैं, वर्टेब्रेट्स होते हैं। वर्टेब्रेट्स के कितने हैं, अराउंड 70,000 प्लस। तो इंसेक्ट्स हो गए, इंसेक्ट्स के बाद फंजाई होंगे, फंजाई के बाद वास्कुलर प्लांट्स होंगे, क्रस्टेशियन होंगे, वर्टेब्रेट्स। उसके बाद है रेजिस्टेंस ऑफ ऑपरेशन टू ए पैथोजन एज ए रिजल्ट ऑफ इम्यूनिटी ऑफ ए लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन हार्ड इम्यूनिटी, हार्ड इम्यूनिटी। ये डिटेल, बाकी सभी इम्यूनिटी जैसे इनिट इम्यूनिटी है, कभी डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन, एडेप्टिव इम्यूनिटी है, मॉर्बिडिटी है, ये तो हो गया कि स्टेट ऑफ बीइंग डिजीज और अनहेल्दी। उसके आगे चलते हैं, रिमूवल ऑफ स्पीसीज। ठीक है, लीड टू सिग्निफिकेंट चेंज दैट स्प्रेड थ्रू आउट द फूड वेब। स्पीसीज को क्या बोलते हैं, तो सिंपल से जवाब है, स्पीसीज को पढ़े तो पहले की स्टोन स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, की स्टोन स्पीसीज को निकालने तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज होता है। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज इफेक्ट होता है। क्लाइमेक्स स्पीसीज तो सबको पता ही होगा नहीं, इन्वेजिव स्पीसीज तो ये खुद ही चेंज करता है, तो ये क्या ही है। ठीक है, रिमूवल नहीं है, ये एडिशन का है। ठीक है, उसका था फ्लैक्सिव स्पीसीज, तो फ्लैक्सिव स्पीसीज तो हम एम्बेसडर की तरह काम करता है ना, हमें एक नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये स्पीसीज ओरिजिनेट्स कहाँ से करता है। ठीक है, तो फ्रॉम, ओनली फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन नहीं, ओनली फॉर रिप्रोडक्शन नहीं, फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन व्हेन इट इज कपल्ड विद रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ये सही बात है, इधर फॉर नेचुरल नहीं, ये मतलब सॉरी, ये तीसरा सही है। ठीक है, ये डाइवर्जेंस के कारण होता है, आइसोलेशन में डाइवर्जेंस हो जाता है। ठीक है, मतलब कई सारे हैं, तो इसमें दो चीज होती है, डाइवर्जेंस, दूसरा हमारा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, की जीन फ्लो बिटवीन डाइवर्जिंग पॉपुलेशन के कारण। ठीक है, तो उसके कारण होता है कि जीन फ्लो नहीं होगा तो वो स्पीसीज अलग तरह से डेवलप करेगा, और दूसरा स्पीसीज अलग तरह से डेवलप करेगा। आइसोलेशन के कारण दोनों अलग अलग तरह से डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या है कि नेचुरल, कोई कह रहे हैं कि नेचुरल सिलेक्शन, तो वो तो सिर्फ
पॉपुलेशन को डाइवर्ज करने का काम करता है ना, लेकिन विदाउट रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जीन फ्लो कैन होमोजेनाइज देम अगेन। ठीक है, अगर फिर से कॉन्टेक्ट में आते हैं। और जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है वो सिर्फ डिपेंड करता है जीन फ्लो के, लेकिन अगर डाइवर्जेंस नहीं हुआ है, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन और समथिंग, तो फिर तो मुश्किल है ना, फिर कहाँ से वो क्या आइसोलेटेड पॉपुलेशन आएगा जो अलग अलग करेगा। तो बोथ प्रोसेसेस आर जनरली साथ में आते आएंगे, तब जाके क्या होता है, स्पीसीज ओरिजिनेट करता है एक नया। नेक्स्ट, ईच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एक टू बायोरेगुलेशन। मतलब जो कंटेमिनेटेड एरिया है, उस चीज है उसको ले गए दूसरी जगह, ट्रांसपोर्ट किए, वहां पे हमने उसको डिकंटेमिनेट किया, उस तो वो एक्सिट होता है, कौन सा इसमें से नहीं है। ये बताना है। तो ये तो मेरे हिसाब से बहुत ही आसान होना चाहिए। इसमें से क्या है, बायो रिएक्टर्स नहीं, बायो फिल्टर्स नहीं, लैंड फार्मिंग नहीं, क्या है, बायो वेंटिंग। बायो वेंटिंग है एक्सी2, इसमें से नहीं है, क्या है, इन-सिटू है, वहीं पे हम बायो वेंट करते हैं। ठीक है, बायो वेंटिंग में क्या है, एयर या ऑक्सीजन हम इंजेक्ट करते हैं कंटेमिनेटेड सॉइल में, ताकि वहाँ पे जो इंडिजीनियस माइक्रोऑर्गेनिज्म है उनकी एक्टिविटी स्टिमुलेट कर सके और जल्दी जल्दी डिग्रेड हो सके कंटेमिनेंट। उसके बाद बायो रिएक्टर, बायो एक्सी2, जहाँ पे कंटेमिनेटेड सॉइल सरी को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं और या फिर वाटर को वहाँ पे ट्रीट किया जाता है कंट्रोल वेसल्स में, रिएक्टर्स में। बायो फिल्टर्स यहाँ पे भी एक्सी2 है। बायो फिल्टर्स यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं टेक्निक यूज करते हैं, ट्रीट कंटेमिनेटेड एयर स्ट्रीम बाय पासिंग देम थ्रू अ फिल्टर बेड कंटेंट कंटेनिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो रिजेक्ट करते हैं। उसका क्या है, लैंड फार्मिंग। लैंड फार्मिंग भी एक्सी2 है, जहाँ पे कंटेमिनेटेड सॉइल को एक्सीवेट किया जाता है, पूरा जेसीबी लगा के उठा लिए और स्प्रेड ओवर ए प्रिपेयर्ड सर्फेस, पहले से एक प्रिपेयर्ड सर्फेस रहेंगे, उसके चारों तरफ हम कर देंगे और पीरियोडिकली क्या करेंगे, टिल्ड करेंगे उसको, अब माइक्रोबियल डिग्रेडेशन हो। तो ये याद रखना, बायोडोमिनेटेड रूम और भी होते हैं, एक्सी2 इंसी2, तो वो चार्ट हम जब पढ़ेंगे तो उसमें बता देंगे। हिसाब से ये सवाल आते हैं, बहुत सी सवाल आते हैं, अगर पता है तो एकदम फ्री का नंबर। नेक्स्ट क्या है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कॉजेस। सो बायोडाइवर्सिटी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कॉज से क्या होता है, ओरिजिनल सर्विस लॉस होगा, बिल्कुल रेगुलेटिंग होगा, बिल्कुल कल्चर होगा, सबका लॉस होगा। ठीक है, सारे सर्विसेज का। उसके बाद क्या है, ठीक है, तो जॉब जानस की क्लासिफिकेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मैकेनिज्म इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करता है, हैबिटेट सिलेक्शन इंक्लूड करता है, फ्लावरिंग टाइम्स इंक्लूड करता है, फिजिकल एक्सप्रेशन इंक्लूड करता है, आइसोलेशन बाय पॉलिनेटर्स इंक्लूड करता है, हाइब्रिड विगर ना। तो ए बी डी। तो ठीक है, तो ये इस प्रकार यूनिट 3 का पीवाईक्यू डन। ठीक है, इससे आपको आइडिया लग गया होगा किस तरह के सवाल आते हैं, किस एरिया में पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 3 ओ, सो डन। ठीक है, इफ यू हैव लाइक्ड इट, पसंद आया, यू लाइक्ड इट, तो प्लीज डू शेयर, डू लाइक, डू कमेंट, टू सब्सक्राइब टू चैनल। ठीक है, इफ यू थिंक हाँ improvement can be made in this area, you can suggest। ठीक है, टेक केयर, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। फॉर्म आ गए, अप्लाई करते हैं। क्या, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और थोड़ा डिले हो गया बिकॉज आई वॉज इल। ठीक है, स्टिल नॉट फिट बट स्टिल, बट कीप गोइंग, बट हमें चीज़ों को कीप गोइंग करना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।